Thank you very much, madam. First of all, I would also like to thank you for inviting me as a resource person in this pre-PhD coursework. This is called research methodology. And yes, there are several problem in our academic system where we have a proper lack of proper knowledge and how to proceed the research when any research scholar is entering in any institute. For example, if the institute is very good, okay, so let's say IITs and ISERs and ISCs like institute, and maybe the foreign countries, the institutes. So they are, not having such kind of problems where the students are, not able to understand what way they have to proceed their research and like this way. So in my opinion, since I'm also working in this university system after, attaining a lot of experience from the abroad as well as, reputed institutes of our country, so I used to disseminate some knowledge and during this coursework, and I'm also teaching and heavily engaged in this research methodology coursework. So I think it is better to start some slide presentation, and then the students and the research scholars have much more flavors as well as the information, and in between if they are having any question, so they can also ask whether it is in between also it can be possible. So it is a kind of live discussion as well as like just like a virtual classroom. Okay. And the same time, if they do not want to prefer, then they can also interact after the this finishing of this the research methodology coursework. And remember, this coursework or this topic is not 1 day and 1 hour lecture. So, but I will Yeah, try my best so to finish and to maximize or to give the knowledge, to distribute the knowledge among the students so that they can be having some kind of flavor how they should proceed if I provide some online teaching material. So by studying and by looking on the online teaching material, so they will also get some information and some ideas that whatever I have basically taught by today. So this is the just a brief kind of summary. So let me share my presentation first, I think. sir, Okay. I have a request also. Most Yes. of our students are from the English medium, sorry, Hindi medium. So better will be if you will use the bilingual. Can it be ओके ओके, possible, sir? नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सो ऐसा करते हैं, हम हिंदी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो किसी को भी, तो आई विल ट्राई टू मेक अप ऑल दीज थिंग्स इन बोथ इन बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस। दैट इज द बेसिकली Yeah. मेन प्रॉब्लम इन आवर इंडियन सिस्टम। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट, मैं सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हेजिटेट ना करें, है ना। लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर टू लर्न साइंस। ओके। एंड मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब रिसर्च मैथोलॉजी पर ही आ रहे हैं हम, तो व्हेन आई वाज इन जर्मनी एंड आई वेंट इन जर्मनी 2009, जब मैं जर्मनी में पहुंचा 2009 में, मार्च 2009, 15 मार्च। सो वहां पर मैंने एक चीज देखी कि they hardly like the other language other by other than this their Deutsch language, their German language. So preferably वो जो है जर्मन लैंग्वेज में बात करना पसंद करते थे और रिसर्च प्रॉब्लम को जर्मन लैंग्वेज में जो है डिस्कस करते थे। क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम जो है हिंदी भाषी लोग हैं या अपनी मदर टंग हमारे पास है। हमारे पास प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या आता है कि जो स्टूडेंट्स को मैं समझ पाया हूँ, वी हैव अ थॉट प्रोसेस इन हिंदी मीडियम। हमारे दिमाग में कुछ भी चल रहा होता है तो हम बहुत क्विकली सोच रहे होते हैं और सारी की सारी चीजें हिंदी में चल रही होती हैं, है ना। तो अब सडनली हमसे बोला जाए कि जस्ट लिटिल बिट डिस्ट्रीब्यूट दिस नॉलेज अमंग द अदर पीपल और इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंग्लिश। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारा सबसे बड़ा एक इमीडिएटली एक कंसर्न जाता है ट्रांसलेशन। तो हम जो है उसको ट्रांसलेट करके माइंड में ले जाते हैं एंड देन वी यूज टू स्पीक बाय आवर माउथ, एंड देन क्या प्रॉब्लम आती है कि फिर हम उसको पूरा पूरा ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हम साइंस को समझ रहे होते हैं, हम साइंस को फील भी कर रहे होते हैं, हम ये भी जान रहे होते हैं कि इस चीज को हम भी समझते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और मे बी सम काइंड ऑफ बैरियर जो हमें अपने टाइम पर नहीं मिला, क्योंकि हमारा जो इंडियन सिस्टम है काफी देर में, आजकल तो खैर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी
जो स्कूल के बच्चे हैं उनको हम शुरू से ही इंग्लिश की नॉलेज देना शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जो पुराने बच्चे हैं, जो इवन हमारे स्पेशली पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं या और भी कहीं ऐसे बैकवर्ड इलाके के बच्चे हैं, तो उनको तो उनकी तो मदर टंग मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है घर में वो अपनी कुमाऊनी और गढ़वाली लैंग्वेज में ही बात करते हैं। हिंदी भी बहुत रेयरली बात करते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी डायलेक्ट सुनोगे तो उनका टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इंडिकेट किया। तो मैं ट्राई करूंगा कि जितना भी हो सके मैक्सिमाइज करूंगा कि वो हिंदी में ही डिस्कशन हो, जिससे कि उसके अंदर सबसे पहले नॉलेज तो बैठ जाए। जब वो नॉलेज बैठ जाएगी और सीख जाएगा, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम और हर कि उसके बाद वो आसानी से उसको अपने वर्ड्स में या अपने इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स में उसको लिख सकता है, और नहीं लिख पा रहा है तो एटलीस्ट पिक्टोरियल ग्राफ में उसको बता सकता है। तो जिससे कि हमें ये समझ में आ जाएगा दैट स्टूडेंट is able to understand the science and whatever the concept delivered here, है ना? So this is basically the very important thing. So I think any other question, any other things from your side, so that I have to stick in that guideline, है ना? No, sir. Okay, then I am sharing my PPT. Let us start. Yes. So I hope you can see it now. Yeah, it is visible, sir. इट इज एंटायरली कमिंग ऑन द स्क्रीन, और देयर आर हाँ एक प्रॉब्लम और भी इसमें है। अक्सर हम जब ये ऑनलाइन टॉक देते हैं तो कई बार क्या होता है कि जब हम फ्लो में चला रहे होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ मे बी द पुअर इंटरनेट कनेक्शन, ये क्या हो रहा है कि हम जब तीसरी या चौथी स्लाइड में होते हैं तो ये फर्स्ट स्लाइड ही शो कर रहा होता है। तो इस बीच अगर ऐसा किसी को भी प्रॉब्लम आए तो इमीडिएटली वो हमको रेस्पॉन्स दे या इमीडिएटली हमसे क्वेश्चन पूछे, तो हम उसको फिर थोड़ा सा स्टॉप करके देन आई विल मेक इट स्लो, लिटिल बिट स्लो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज द रिसर्च मेथोडोलॉजी PhD कोर्स वर्क पेपर, and this slide is basically I thought that I have to give little bit introduction about mine. So but there is no need of this introduction now because it is already given by ma'am, and now I am directly coming to the research methodology process. So here ये देख सकते हैं आप कि जो 7 स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस है यहाँ पर, किसी भी रिसर्च प्रोसेस को, एंड ऐसा ना सोचें कि ये मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किया है, ये दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द इंटरनेट सोर्सेस एज वेल एज, and finally by reviewed by my own, and after rethinking and lot of process and kind of very little research I have also done by preparing or while preparing these slides. So मुझे लगा कि हाँ ये 7 स्टेप ही इतने जरूरी हैं, बाकी तो उसके जितने भी हो सकते हैं वो सब स्टेप होंगे। तो पहला स्टेप जब हमारा आता है, ये पहला स्टेप हमारा है स्टेप 1, डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। तो जब कोई भी स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी में या हमारे इंस्टीट्यूट में आता है तो सबसे पहले उसको रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करनी पड़ती है, और तभी जाके वो रिसर्च प्रॉब्लम पर उस पर काम कर पाएगा या करना चाहेगा। और स्टेप 2 हमारा जो होगा वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनटिल अनलेस कोई भी स्टूडेंट अगर रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं करता है, और वो भी रिगरसली, ऐसा नहीं कि वो 1 या 2 पेपर पढ़े या 3 पेपर पढ़े या 4 पेपर पढ़े, ऐसे कुछ नहीं होगा। उसको बहुत ज्यादा रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली ही विल डेवलप हिज नॉलेज एंड आइडिया अबाउट the defining and how to define the research problem. So आप देख सकते हैं, so point number 1 and point number 2 they are basically interrelated to each other. So अगर हम आपसे being a guide ये बोले कि चलो ठीक है आप हमारे अंडर ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, आप इसके बाद अब आप अपनी एक प्रॉब्लम डिफाइन कीजिए। तो प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए आपको लिटरेचर सर्वे जरूर करना पड़ेगा। तो लिटरेचर सर्वे जब करेंगे तो सबसे पहले लिटरेचर सर्वे करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर गाइड को आपने ज्वाइन किया है या जो पर्टिकुलर ग्रुप को आपने ज्वाइन किया है, उस ग्रुप का रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, रिसर्च फील्ड क्या है। जैसा कि मेरे वेब पेज से आपने देखा होगा, तो मेरा रिसर्च इंटरेस्ट जो है पेप्टाइड एंड न्यूक्लियो बेस्ड केमिस्ट्री है।
सेल्फ असेंबली, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, एज वेल एज मेडिसिनल एंड केमिकल बायोलॉजी जो स्टफ है, ये सारी चीजें हैं. तो बेस्ड ऑन दिस, सो आई हैव अ ब्रॉड काइंड ऑफ यू कैन से द रिसर्च एरिया. सो आपको इसमें से ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले बेसिक में कहाँ से स्टार्ट करूं. तो बेसिक स्टार्ट करने के लिए तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा पेप्टाइड एंड न्यूक्लियोबेस. क्या पेप्टाइड होते हैं, क्या न्यूक्लियोबेस होते हैं, इनका बेसिक नॉलेज जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीज आगे नहीं ना तो पढ़ पाएंगे ढंग से और ना उसको समझ पाएंगे. यहाँ पर बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है. जैसे हम कोई भी नया स्टूडेंट आता है, उसको अगर हम सपोज एक लिटरेचर दे दें या एक पेपर दे दें, उसको बोले कि तुम पढ़ो और मुझे सुबह कल को डिस्कस करके बताना, तो मैंने हार्डली ऐसे स्टूडेंट अभी तक देखे, बहुत कम है जो एक दिन में या 2 दिन में उस पेपर को पूरा समझ के हमको बता दें. अगर वो बताते भी हैं तो वो टोटली मैसअप होता है और कुछ का कुछ होता है. तो कई बार लगता है कि इसका मतलब इसका बेसिक नॉलेज ही नहीं है, इसको मालूम ही नहीं कि व्हाट आर बेसिकली पेप्टाइड्स एंड व्हाट आर बेसिकली योर न्यूक्लियोबेसिस. तो ये पेप्टाइड एंड न्यूक्लियोबेसिस पर ही नहीं टिका हुआ है, ये इसी तरीके से और भी रिसर्च टॉपिक पर टिका हुआ है. नाउ अगर आप इन दोनों चीजों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका थर्ड स्टेप आता है फॉर्मुलेट योर हाइपोथेसिस. अब आप अपनी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे कि आप कैसे इस पर काम करेंगे और कैसे इस पर रिजल्ट आएगा फाइनली. ठीक है ना. तो स्टेप 4 जो होगा वो प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन. अब आपके पास एक जो डिजाइन किया हुआ है या आपके दिमाग में जो चल रहा है, उसको आप कैसे एक तरीके से एक प्रिपेयर वे में लाओगे या ऑन द पेपर लाओगे या डिस्कस करोगे इन द ग्रुप मीटिंग एंड सो ऑन. एंड देन वंस यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स, तब आपको एग्जीक्यूट करना है, उस चीज को एग्जीक्यूट करना है. एग्जीक्यूट का मतलब यह है कि आपको उस पर काम करना है. देखिए, जो रिसर्च है, रिसर्च एक ऐसा काम है जो प्रैक्टिकली बहुत बेस्ड है. आपको हर चीज प्रैक्टिकली करनी पड़ती है और इसीलिए जब भी कभी आप मेरे से इवन बात करेंगे तो आई ऑल्सो लिटिल बिट मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. ओके, सो ये प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम बात करते हैं थ्योरेटिकली तो हम बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, है ना, ऐसा होगा, ऐसा कर देंगे, बड़ी बड़ी बात है ना, जैसे हाँकना कहते हैं हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में. लेकिन जैसे ही हम एक बात करने की आती है तो हम कर नहीं पाते हैं. छोटा सा एग्जांपल लें, हम ये बोलते हैं कि आप साइकिल चलाइए और साइकिल चला के इस पहाड़ी पे ऊपर चढ़ जाइए. ठीक है ना. आप कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं है, जब सर यहाँ से स्पीड मेंटेन करके ले जाओ और बैलेंस बना के रखो, चढ़ जाओ ऊपर. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर 100 स्टूडेंट्स या 100 कैंडिडेट ये ट्राई करेंगे तो वो पहाड़ी पर हर कोई नहीं चढ़ा पाएगा. शायद ही उसमें से कोई एक होगा जो चढ़ा के ले जाएगा. दैट इज बेसिकली द टोटली प्रैक्टिकल. तो इसका मतलब यह है कि आपने डिजाइन कैसे किया एंड देन कम्स टू द डाटा कलेक्शन. कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हालांकि ये यहाँ पर जो दिख रहा है, ये अभी एक ही स्लाइड है, आगे आएंगे धीरे धीरे हम उसके डेप्थ में आते जाएंगे. तो जो स्टेप 5 है, आपको डाटा कलेक्शन करना है. तो डाटा कलेक्शन करना भी एक आर्ट है कि किस तरीके से आपको डाटा कलेक्शन करना है. अगर आपने रॉन्ग तरीके से डाटा कलेक्शन कर लिया तो आपका समय भी जाएगा और साथ ही साथ आपका कोई भी कंक्लूजन नहीं हो पाएगा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू कलेक्ट डाटा अकॉर्डिंग टू वेरी स्ट्रेटेजिक एंड रैशनल वे. बहुत ही एक डिजाइन एंड सधे हुए तरीके से डाटा को कलेक्शन करना है. नाउ वंस डाटा कलेक्शन हो गया तो अब आपको डाटा के एनालिसिस करनी है. ये बहुत ही, उसके बाद जो दूसरा जो बोलेंगे इसके बाद जो स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेप है. कई बार क्या होता है कि हम डाटा कलेक्शन तो कर लेते हैं, लेकिन डाटा कलेक्शन के बाद हम डाटा एनालिसिस करने में कहीं ना कहीं मुंह चूक कर जाते हैं. हो सकता है हमारे दिमाग में एक हाइपोथेसिस बैठी हो कि हमारा डाटा ये आना चाहिए, लेकिन डाटा नहीं आ रहा, डाटा कुछ अलग आ रहा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जो रिसर्च में डिजाइन किया था, हमको ऐसा लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए था, इसलिए ऐसा होगा और फाइनली हमको ये डाटा मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं मिल रहा होता है. हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं. हम सोचते हैं नहीं, हमने गलत कर दिया, यहाँ कहीं गलती होगी, हमसे फेलियर हो गया. रिमेंबर डियर, फेलियर भी रिसर्च में एक रिसर्च है. आपको अगर किसी चीज में फेलियर मिल रहा है तो वो भी एक रिसर्च है. भी किस तरीके से आपको फेलियर मिला, क्यों फेलियर मिला, या इंस्ट्रूमेंट की खराबी थी या आपके करने में तरीके में खराबी थी, तो ये भी अपने आप में एक रिसर्च है. तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है. ठीक है. तो डाटा एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है. एंड जब डाटा एनालिसिस करेक्ट हो जाएगी तो उसका इंटरप्रिटेशन ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा. और जब इंटरप्रिटेशन ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा तो आप उस पर कोई भी रिपोर्ट आसानी से कंपाइल कर लेंगे, राइट कर लेंगे, एंड फाइनली यू विल सबमिट द मैन्यूस्क्रिप्ट और वॉट एवर थीसिस एंड जो भी है, या पेटेंट कहें या आप उसके उस पर कॉपीराइट कहें, तो वो सब आप आसानी से कर लेंगे. तो डियर, ये हमने सिर्फ 7 स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया, बट इनके अगर डीप में जाएंगे तो हमको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, एक एक चीज को ढंग से समझना पड़ेगा. तो व्हाट इज बेसिकली द रिसर्च अप्रोच? द नेक्स्ट स्लाइड एग्जैक्टली डीलिंग विद दिस कॉन्सेप्ट. ओके, हम क्या करते हैं? प्लान्स एंड प्रोसीजर ऑफ रिसर्च दैट स्पान द स्टेप फ्रॉम ब्रॉड एजम्पशन टू मेथड्स
ऑफ डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अगर हम देखें तो अगर हम रिसर्च अप्रोच की बात करें और उसका कॉन्सेप्ट में देखें तो हमारा, अब जो हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, that the slide basically dealing with the 7 step only. In these 7 step, review of literature, that means the hypothesis and design of your research से लेकर के डाटा कलेक्शन से लेकर के डाटा एनालिसिस से लेकर के फाइनली आपका कंपाइलेशन इन द रिजल्ट ऑन द पेपर। क्यों, अब इसकी जरूरत क्यों है? बेसिकली अगर आप सोचें तो हम कहेंगे सर हम भी रिसर्च कर रहे हैं, आप भी रिसर्च कर रहे हैं, पब्लिश आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं, नाम ही रिसर्च है सबसे पहले तो, और इसका बहुत ज्यादा यूज किया है। बेसिकली क्या है कि हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम में कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे करके अप टू सम एक्सटेंड फॉर द सोसाइटल बेनिफिट उसको कर रहे हैं। ऐसा कोई भी रिसर्चर ये ना सोचे कि मैं सिर्फ पीएचडी कर रहा हूँ। बहुत पहले ऐसा हुआ करता था, अभी तो खैर बहुत कम हो गया है। इनिशियली जब हम पीएचडी स्टार्ट किए थे अपने टाइम पर, तो पीएचडी कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में एक बैड इंप्रेशन डालती थी, है ना। पीएचडी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता था कि अगर पीएचडी कर रहे हैं तो दैट मींस दैट पर्सन इज नाउ एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर प्रोफेसर एंड द प्रोफेसर इज गिविंग ऑल द काइंड ऑफ नॉन और यूजलेस स्टफ और वर्क, है ना, एंड दैट पर्सन हैज टू डू ऑल दीज वर्क्स। फॉर एग्जांपल, मुझे कोट नहीं करना चाहिए बट it is the kind of a problem of our Indian society, ये सारे काम उसे करने हैं, तो ये उसका पीएचडी का मतलब होता था। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पीएचडी को थोड़ा सा गौर से देखें, क्योंकि इससे ऊपर कोई डिग्री नॉर्मली है नहीं, दिस इज द टॉप डिग्री, एंड इस डिग्री का मतलब है कि आपको जब ये डिग्री अर्न करनी है तो जिस दिन आप इस डिग्री को अर्न करें तो उस दिन आपको रियलाइज हो, फील हो कि यस यू हैव कंट्रीब्यूटेड एटलीस्ट अ वेरी लिटिल, है ना, इन द रिसर्च और इन द साइंटिफिक फील्ड, इन द पर्टिकुलर फील्ड फॉर द सोसाइटी एंड फॉर यू एज वेल, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च अप्रोच हमेशा, जो हालांकि पहली जो लाइन लिखी है हमने, इस लाइन में डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन की बात की, तो लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये भी ऐड करना चाह रहे हैं कि ये अप्रोच होना बहुत जरूरी है। तो रिसर्च इज नॉट अ काइंड ऑफ वेरी ऐसा कोई खेल नहीं है, इसीलिए शायद उसको 5 साल या 3 साल या किसी इंस्टीट्यूट में तो 6 7 साल 8 साल लग जाते हैं, ठीक है। हमारे जान पहचान के बहुत सारे ऐसे हमारे कलीग हैं जिनके पीएचडी कंप्लीट होते होते जो है उनको 10 से 11 साल लगे हैं, एंड फाइनली दे आर इन अ वेरी गुड एंड रेप्यूटेड institute where they are working and serving as a director or vice chancellor or some kind of good scientific officer, and renowned scientific officer in that way. Now coming to the second point, the overall decision involved. जब आप रिसर्च की बात करते हैं तो आपका जो डिसीजन है, इस डिसीजन में क्या क्या चीज होना चाहिए? Which approach should be used to study a topic? वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी बेसिक अप्रोच, कि कौन सी अप्रोच हमें यूज करनी चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन्फॉर्मिंग दिस डिसीजन शुड बी द फिलोसॉफिकल एजम्पशन। वो एक फिलोसॉफिकल एजम्पशन होगा। इसीलिए कहते हैं ना, जब आप किसी प्रोफेसर से बात करते हैं, बहुत विद्वान आदमी से बात करते हैं, अरे यार ये तो फिलोसोफर है पूरा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो ऐसे ही नहीं बन जाता फिलोसॉफी। तो उसका एक सोचने का, उसका एक नजरिया सोसाइटी को देखने का बिल्कुल ही अलग होता है, तो वो उसी हिसाब से काम करता है, ठीक है ना। एंड द फिलोसॉफिकल एजम्पशन द रिसर्चर्स ब्रिंग टू द स्टडी, फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजर्स ऑफ इंक्वायरी कॉल्ड रिसर्च डिजाइन, है ना। अब हम उसका डिजाइन की बात कर रहे हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लें। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री की बात जब हम करते हैं तो आपने एक मेजर चीज देखी होगी, और मे बी एक बेस्ट ट्रेंड एक फील किया होगा, कि जितने भी साइंटिफिक पर्सनल लोग होते हैं, नॉट ओनली केमिस्ट्री, साइंटिफिक पर्सनल मींस जो दोज हु आर हाईली इंगेज इन अ practical aspect or practical things. So what they are very good in a household step. For example किचन में बहुत अच्छे कुक होंगे, है ना, उनका हर चीज एक सिस्टमेटिक होगा, उनका रूम हमेशा एक ऑर्गेनाइज होगा, उनका ऑफिस हमेशा एक ऑर्गेनाइज वे में होगा, उनका लिविंग स्टाइल एक हमेशा एक डिसिप्लिन वे में होगा, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो इस तरीके से जब वो अप्रोच की बात करते हैं तो अप्रोच शुड बी ऑलवेज अ पॉजिटिव अप्रोच। ऐसा नहीं कि यार हमें पीएचडी अब चलो करनी है, कुछ नहीं मिल रहा है तो हम पीएचडी करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पीएचडी करने का मतलब है आप अपनी लाइफ का 5 साल, पूरा 5 साल तो मिनिमम दे रहे हैं, एंड उसके बाद आपको डिग्री मिल रही है, तो उस 5 साल में आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, समझनी है। एंड मैं एक
मैं ये बोलूंगा कि आई वाज द लकीएस्ट पर्सन कि मेरे को उस 5 साल के लिए जो मेरे मेंटर मिले, है ना, प्रोफेसर संदीप वर्मा एज वेल एज आफ्टर दैट प्रोफेसर अलेक्जेंडर हैकेल फ्रॉम जर्मनी, और भी टीचर हैं और भी मेरे दोस्त लोग भी हैं, आई ऑलवेज कंसिडर देम एज माय इंस्पिरेशनल फैक्टर। सो इन लोगों ने मुझे इस तरीके से ट्रेन किया, इस तरीके से फ्रेम किया कि आज मेरे अंदर इतना एक कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, कि यहाँ पर नोट करना इस चीज को, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं आज अगर कहीं भी मेरे पास कुछ भी ना हो तो मैं वहां पर आसानी से सर्वाइव कर सकता हूं। मेरे पास देयर आर सो मेनी वेज दैट आई कैन डू दिस थिंग। इट इज नॉट दैट कि मैं अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ देम ओनली, देयर ट्रेनिंग, है ना, इनकी जो हार्ड ट्रेनिंग है, इनका जो डिवोशन है, टाइम है रिसर्च के प्रति, आज भी वो उतना ही है जितना उस समय था। तो इनको देख के सीखने का या इंस्पायर होने का एक बहुत बड़ा मतलब चांस मिलता है, और मैं आज भी उनसे इंस्पायर होते रहता हूँ। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड थर्ड स्लाइड। सो टाइप्स ऑफ रिसर्च अप्रोचेस, कौन कौन सी अप्रोचेस हमें यूज करनी चाहिए। अब हम, क्योंकि हम जब इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करके पढ़ रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं कि डिलीवर कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि सर ने शुरू कहाँ से किया था, है ना, एक छोटी सी बात से रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा रहे थे, और सर अभी बोले कि रिसर्च अप्रोचेस ऐसी होनी चाहिए। अब रिसर्च अप्रोच भी टाइप होने लग गए, है ना। यस, बिकॉज वी आर द इंटेलेक्ट एंड वी आर द रिसर्चर। तो हम एक एक अप्रोच को ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्लाइड बता रही है, ये उसी कैटेगरी को बता रही है। जैसे पहली कैटेगरी है द डिस्क्रिप्टिव स्टडी, दैट मीन्स दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई the characteristic of a problem through description. That means it should not be a very constrained way, it should be a very descriptive study. That's why in PhD 5 years are getting, people are taking more than maybe 5 years, some are lucky they are getting in 3 years only. Okay, that is a different another problem. But अगर आप इस डिस्क्रिप्टिव स्टडी को करेंगे तो इससे क्या होगा कि इससे आपको उस टॉपिक को और उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं उसको समझने में बहुत आसानी होगी। नाउ द सेकेंड स्टडी एंड द सेकेंड अप्रोच इज दैट इज द एक्सप्लेनेटरी स्टडी। अब आपने डिस्क्रिप्टिव तो कर लिया, नाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन देम, है ना। दिस अप्रोच अटेम्प्ट टू फाइंड द आंसर टू एन एनिग्मेटिक क्वेश्चन, जो बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका अभी तक कहीं से पता नहीं है, बिल्कुल एनिग्मा क्रिएटेड है, एंड देन यू आर डिफाइनिंग एंड यू आर ट्राइंग टू आंसर दैट, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन this question, this enigmatic question in your own way. Remember, एक चीज ध्यान रखना, आपका एक तरीका हो सकता है किसी क्वेश्चन को आंसर करने का, दूसरे का अलग तरीका होगा किसी क्वेश्चन को आंसर करने का, तीसरे का अलग तरीका होगा किसी क्वेश्चन को आंसर करने का। तो इस तरीके से हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हर क्वेश्चन के आंसर में, या जो आंसर आपने दिया है वो हो सकता है, बट द आंसर शुड नॉट बी रॉन्ग। मे बी कुछ चीजें आपकी कम हो जाए, इस बार एक्सप्लेन ना कर पाओ, तो हो सकता है किसी दूसरे पर्सन ने उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल लैम्बर्ट बियर्ड अगर केमिस्ट्री में आप पढ़े तो, है ना, एक ने बोला कि सिर्फ जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दूसरे ने बोला कि नहीं कंसंट्रेशन नहीं पे सिर्फ ये लेंथ, पाथ लेंथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो दैट्स व्हाई नाउ द लॉ केम फॉर द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, लैम्बर्ट बियर्ड लॉ। इसी तरीके से शायद और भी साइंस में ये चीजें होती होंगी। अनदर थिंग इज दैट द रिमेडियल और इंप्रूविंग स्टडी, बस आप क्या इंप्रूव करना चाहेंगे इसमें। अब ये यही पहले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है मेरे। हमने जब एक्सप्लेन किया और मैंने उसी को मैंने बताया, समझाया आपको कि मेरा एक तरीका है इस क्वेश्चन को आंसर करने का, हो सकता है आपका दूसरा तरीका हो इस क्वेश्चन को आंसर करने का, बट जो पॉजिटिव आउटकम है एक वर्ड में अगर देखा जाए तो आंसर का क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने दिया, बट देयर वाज अ लिटिल डिफरेंस। तो दैट मीन्स द थर्ड अप्रोच इज कमिंग नाउ, व्हाट विल बी द रिमेडियल, है ना, व्हाट विल बी द improvement there. So that means improving the study. Okay, now once you are doing the improving the study, and for that way you will need a methodological study. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने A पहले पकड़ा उसके बाद लास्ट में सीधे Z पकड़ लिया, ऐसा नहीं। A के बाद B ही पकड़ना है, उसके बाद C नहीं, ऐसे आएगा। ऐसे करके एक मेथड डेवलप होगा, एंड द मेथड शुड फॉलो स्टेप बाय स्टेप। आज भी किसी रिसर्च पब्लिकेशन का या किसी रिसर्च का अगर इम्पैक्ट होता है तो वो इम्पैक्ट तभी सबसे हाईएस्ट होता है जब उसमें एक मेथोडोलॉजिकल अप्रोच रिसर्च की जाती है। अदरवाइज रैंडमली कोई भी चीज पिकअप करेंगे और उसका आप एनालिसिस करेंगे तो कभी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे इंटरेक्ट करूं किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी लाइव एकेडमिक या सपोज डिबेट में, तो आपसे मैं पूछूं कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, है ना, तो आप मेरे को बोलेंगे कि सर हम ये रिसर्च कर रहे हैं, तो मेरा इमीडिएटली क्वेश्चन होगा कि ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं।
ठीक है ना, व्हाट विल बी द आउटकम, है ना, और आपने थोड़ा बहुत अगर बताना शुरू किया तो ठीक है, तो उसी में मेरे क्रॉस क्वेश्चन उन्हें शुरू करेंगे। अगर आप उसमें थोड़ा सा कहीं पर या गड़बड़ाए या कुछ भी ऐसी चीज हुई, तो देन आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ, इसका मतलब यह है कि ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च जस्ट द फिलिंग फॉर गेटिंग फॉर द डिग्री, नॉट फॉर द कंट्रीब्यूशन। There is a difference, sorry to say, there is a difference. If you want to contribute for the society and if you want to get for the degree, there are two basically different things. अगर आप प्रॉपर कंट्रीब्यूशन करने के लिए काम करेंगे तो डिग्री तो मिल ही जाएगी, डिग्री इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है ना, बट अगर डिग्री पाने के लिए काम करेंगे तो कंट्रीब्यूशन तो नहीं होना है, तो ये तो तय है ना। और हो सकता है कि डिग्री में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, हो सकता है आपके थीसिस ऐसे पर्सन के पास पहुंच जाए या आपकी रिसर्च ऐसे पर्सन के पास पहुंच जाए इवैल्यूएशन के लिए, जहां पर उसको समझ में आए कि इट इज जस्ट काइंड ऑफ नॉट अ वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड स्टैंडर्ड रिसर्च, so that means ये अच्छी रिसर्च नहीं है, and there will be several bad comment and maybe revision of thesis can come. So ये मैं एक्चुअली ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक मैं डिसाइड यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये उनको ध्यान में रख के किया, यहाँ पर बनाया गया है जो जस्ट अभी रिसर्च में इंटर किए हैं, तो उनको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कमिंग द हिस्टोरिकल स्टडी। हिस्टोरिकल स्टडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पास्ट में देखा कि क्या काम अभी तक हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी रिसर्च प्रॉब्लम को हम अगर डिजाइन करना चाहें, तो ऐसा ना हो कि हम ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम को डिजाइन करने लग जाएं कि जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, जिस पर ऑलरेडी डाटा पब्लिश हो चुका है और वो डाटा वैलिडेटेड है, ऐसा नहीं कि वो फेक डाटा है ना। तो वो सारी चीजें हमको जो है उसकी हिस्टोरिकल स्टडी से पता लगेगा, एंड तभी हम अपनी नई स्टडी और नई रिसर्च डिजाइन को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द अनदर पॉइंट। नाउ द सजेस्टेड ऐसे फॉर्मेट, आपने लोगों ने ध्यान दिया होगा, और मे बी अभी जस्ट अगर पीएचडी एस्पिरेंट है या अभी जस्ट पीएचडी में एंटर किया है, तो मे बी आपको इतना नॉलेज नहीं होगा, लेकिन जब भी कोई रिसर्च को जब कंपाइल किया जाता है, तो कंपाइल करने के बाद हर रिसर्च के उसको जहां आपने उसको पब्लिश करना है या जहां आपने उसको भेजना है, उसका एक फॉर्मेट होता है ना, कि ऐसे फॉर्मेट मतलब आप उसको कैसे लिख रहे हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैंने रेड में लिखा है, इज देयर एनी नीड ऑफ फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट नहीं है तो क्या हम बिना फॉर्मेट के रिसर्च को प्रोड्यूस कर सकते हैं? यस, कर तो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, बट उस कॉन्सेप्ट के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो उसके पीछे एम था, जो उसका मेथड था और जो उसका फाइनली एक्सपेरिमेंटल आउटकम था, वो एक फॉर्मेट वे में अगर होगा तो सोसाइटी को समझने में आसानी होगी, सोसाइटी को फॉलो करने में आसानी होगी। तो इसीलिए हर एक चीज का एक फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदी की बुक अगर हम ले लें और उसमें हम ये बोलें कि ना ये हिंदी का एक चैप्टर है और चैप्टर से स्टार्ट करें और चैप्टर में सीधे सीधे लास्ट का आउटकम लिख दिया हो, पहले का कुछ नहीं लिखा हो, है ना, तो हमको उस चैप्टर को समझने में बड़ी आसानी नहीं होगी, हमें दिक्कत होगी। इवन आज भी हम अगर किसी को लेटर लिखते हैं तो लेटर को हेड करने के लिए या लेटर को हम किसी को लिखने के लिए, संबोधित करने के लिए, सबसे पहले जिसको भेजते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है, उसका नाम होता है, एंड देन सब्जेक्ट कम्स, है ना, and then after that one by one, step by step it is coming. So there must be format. So it is basically the types of research approaches whatever I have discussed here, and till here I would like to ask the question to now madam and audience. Till here, any question, any doubt, to the student I am asking to the student कि कहीं पर कोई डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो जो ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम जो स्विच कर रहे हैं वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का होगा, क्योंकि यहाँ तक समझना बहुत जरूरी है। Yes, student, do you have any doubts? You can ask directly. No, ma'am. Okay. No, ma'am. No, sir. No, sir. I hope सभी को समझ में आ रहा होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ या जो बता रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. so now coming Sir. to a very good kind of slide here. It is components of research approach. ठीक है ना? अभी तक जो हमने बताया वो एक नॉर्मल, देखो यहाँ अब इसमें इसी में वेरिएशन है। अभी हम रिसर्च मेथडोलॉजी की बात जब कर रहे हैं तो आप मेरी प्रेजेंटेशन में देखिए वेरिएशन आते जा रहा है, ठीक है ना। व्हेन आई स्टार्टेड, व्हाट वाज द स्लाइड, नाउ व्हेन आई केम इन बिटवीन, व्हाट वाज द स्लाइड, व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट, ओके, लाइक दिस। तो अब देखते जा रहे हैं धीरे धीरे करके हो क्या रहा है कि हमारी स्लाइड भी वेरी कर रही है, हमारा टॉपिक भी वेरी कर रहा है, बट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों में, दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए, बिना उसको डिस्कस किए हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आ सकते, अदरवाइज जैसे डायरेक्टली यहाँ पर मैं आऊंगा तो आपका दिमाग हैंग कर जाएगा, है ना।
तो देयर शुड बी मैथडोलॉजी, दैट्स व्हाई द टर्म इन बिटवीन, आपने देखा होगा पिछली स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड्स में, कि इन बिटवीन इट द टर्म्स के मैथडोलॉजिकल सर्वे एंड मैथडोलॉजिकल रिसर्च, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस स्लाइड में यहाँ पर देखें 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक है फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यूज, ओके, दूसरा है हमारा डिजाइन, एंड तीसरा है हमारा रिसर्च मेथड्स। हम अभी तक देखा जाए तो हम एक मेथड पर सबसे ज्यादा फोकस हुए हैं, और जिसके बार बार हमने अगर देखा जाए वर्ड से अगर उसको देखें तो हम रिसर्च मेथड को थोड़ा बहुत हम डिस्कस किए हैं, बट हमने ना तो अभी बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यूज को डिस्कस किया है ना, और ना तो हमने जो है डिजाइन को डिस्कस किया है। So they all are interconnected, and these are the 3 basic component of any research when you start, and this is the basically the 3 basic component of any research approach. Okay, what is this? Is philosophical worldviews, design and research method. So ये बड़े 3 important step हैं। अब इनको हम कैसे correlate करते हैं, ये स्लाइड आपको बहुत अच्छा तरीके से समझाएगी। That is called interconnection. Okay, I have given the name is they are all they are interconnected to each other. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिसर्च अप्रोच को बीच में रखें तो ये रिसर्च अप्रोच फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यूज से भी कनेक्ट होती है, ये रिसर्च अप्रोच डिजाइन से भी कनेक्ट होती है, ये रिसर्च अप्रोच रिसर्च मेथड से भी कनेक्ट होती है। अब इसमें पहला क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, ये हमको सोचना है और ये हमको डिस्कस करना है, एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग। सो इफ यू जस्ट कंसिडर देयर इज अ रिसर्च मेथड व्हेन वी कम डायरेक्टली टू द रिसर्च अप्रोचेस। सो रिसर्च मेथड में ऑब्वियसली 3 या 4 पॉइंट ही हमारे पास सबसे ज्यादा रहते हैं। एक डाटा कलेक्शन रहता है, एक डाटा एनालिसिस रहता है, एक इंटरप्रिटेशन रहता है, और एक वैलिडेशन रहता है। अब इनको भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ करके समझा दूं, मैंने पिछली बार भी समझाया था। डाटा कलेक्शन मतलब आप जिस रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपका नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड का हो या साइंटिफिक बैकग्राउंड का हो। नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड का हो तो वो सर्वे करता है, फॉर एग्जाम्पल लिंग्विस्टिक का ले लें, भाषा विज्ञान का ले लें, तो क्या करता है वो एक अपना एक क्वेश्चनर बनाता है और वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। उस पर पूछता है कि सारे 10 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आपने भी देखा होगा, कई लोग आपसे जो है वो चीज करवाते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज बेसिकली देयर डाटा कलेक्शन। बट इन साइंस द डाटा कलेक्शन इज लिटिल बिट डिफरेंट एंड इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द मशीन, है ना, कि हमारे पास कौन सी स्टेट ऑफ आर्ट मशीन है। एंड ये साइंस प्रॉब्लम जो साइंटिफिक पर्सन है इनके लिए बड़ी दिक्कत की बात है ना, और कई बार ये चैलेंजिंग हो जाता है। कैसे चैलेंजिंग हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि आईआईटीज में ऐसा होता है और यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए आप दोषी नहीं है, ना ही मैं दोषी हूं। इसके लिए कई बार सिस्टम, जो हमारा जो सिस्टम है, वहां पर क्वेश्चन हो जाता है कि भाई यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक लोड बहुत ज्यादा है और रिसर्च का थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। ये डायरेक्टली जो डाटा अगर कलेक्शन की बात करें, उन डाटा को देख के हम कर सकते हैं। बट जैसे जैसे रिसर्च का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, वो इस बेस पर बढ़ेगा कि उस इंस्टीट्यूट में या उस डिपार्टमेंट में किस तरीके की रिसर्च फैसिलिटीज हैं। अगर रिसर्च फैसिलिटीज अच्छी होंगी तो डाटा कलेक्शन होने में या उसका टाइम जो लगता है उसको होने में आसानी होगी, है ना। और डाटा कलेक्शन अगर ढंग से हो गया, अच्छी मशीनों के थ्रू हुआ, तो ऑब्वियसली डाटा एनालिसिस भी अच्छा होगा। डाटा एनालिसिस अच्छा हुआ तो ऑब्वियसली उसका इंटरप्रिटेशन भी आप अच्छा करेंगे। जैसे इंटरप्रिटेशन कर लेंगे तो वैलिडेशन के लिए आप पुराने डाटा को देखेंगे, पुराने पब्लिश डाटा को देखेंगे, और सो ऑन अदर चीजों को देखेंगे, तो आप वैलिडेट भी कर लेंगे। नहीं, इसका मतलब जो मैंने डाटा लिया है, जो मैंने डाटा एनालिसिस की है, जो उसका इंटरप्रिटेशन किया है, इसका मतलब इट इज नाउ वैलिडेटेड एंड आई एम करेक्ट। ठीक है, ये डेविएशन कर रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बट it is validated, and hence now I am going to publish this manuscript and it will go to the expert of this field, and then they will also realize हाँ यार बात तो सही है, इसके पास सारी मशीनरी है, इसने सब चेक कर रखा है, ये मशीनरी का डिटेल भी दे रहा है सारा, है ना, सारी चीजें, और धीरे धीरे करके ये आपका क्लियर हो गया। ये वैसा ही एग्जांपल है जैसे आप किसी एक पेट वाले डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आप उसके पास माना मशीनें नहीं है, तो आपके पेट को दबा के या आपसे क्वेश्चन पूछ करके वो ये बताएगा कि हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है, बट ही इज नॉट श्योर, क्योंकि दर्द किसी भी और रीजन से भी हो सकता है। बट वंस यू गो फॉर सोनोग्राफी, देन दैट एग्जैक्टली द कॉज विल गेट फाइंड आउट। हाँ ठीक है भाई, इसका मतलब इसकी किडनी में स्टोन है, या इसका स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम है, या मे बी देयर इज अ काइंड ऑफ लीवर एब्सेस और समथिंग लाइक दिस। सो इस तरीके से तो मशीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी में है वो थोड़ा सा, जो यूनिवर्सिटी पर्सन है या यूनिवर्सिटी पर्सनल है, जो स्टूडेंट है, रिसर्चर है, दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम। बट ऐसा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। अभी मैं आपको फिर उसका भी एग्जांपल बताऊंगा, उसकी भी रेमेडी बताऊंगा कि उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो रिसर्च मेथड की हमने बात कर दी। अब हम आते हैं फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यूज में।
एक्चुअली फिलोसॉफिकल वर्ड व्यूज को हमको पहले डिस्कस करना चाहिए था। फिलोसॉफिकल वर्ड व्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप इनको गौर से पढ़ें। पोस्ट पॉजिटिविस्ट एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्टिविस्ट, तीसरा पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेटिव, एंड चौथा पॉइंट है प्रैग्मेटिस्ट। ओके, एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च, जस्ट इसके आगे रिसर्च जोड़ लीजिए आप, कंस्ट्रक्टिविस्ट रिसर्च एंड ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च एंड प्रैग्मेटिक रिसर्च। इसको अगर आगे जोड़ लेंगे तो आगे जब हम इनको डिस्कस करेंगे तब आपको आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। जब हम डिजाइन की बात करते हैं, डिजाइन में हमारे पास तीन वेरी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स मेथड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ये जितना मैंने अभी रिसर्च आपको बताया है, जितना रिसर्च मेथोलॉजी में समझाया हूं, ये जो स्लाइड है इस पूरे रिसर्च मेथोलॉजी का एक तरीके से हार्ट है। अगर आप अपने सिलेबस को देखेंगे जो मैडम ने मेरे को शेयर किया था, उस सिलेबस में ऐसा नहीं, शुरू में तो आपको लगेगा कि यार सर कौन सा टॉपिक इसमें से कवर कर रहे हैं, बट वंस यू विल जस्ट सी दिस स्लाइड एंड यू विल स्टडी एंड यू विल गो थ्रू दिस स्लाइड, देन यू विल फाइंड इट आपके तो 4-5 टॉपिक ऊपर के डायरेक्ट कवर हो गए, है ना। तो ये एक तरीके से इसका हार्ट है। एंड फाइनली देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। अगर देखें, मैंने ग्रीन साइडेड एरो दिख रहा है सबको, ये साइडेड एरो, ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है? Yes, sir. Yes, you just see here data collection, data analysis, interpretation, validation. That is called research method. Research method directly, related to again these three terms. जो रेड मैंने लिखा है, qualitative, quantitative and mixed method. And this is the basically a very important things for all of us. ये भी important है, ये भी important है, but it is very important things. I will discuss how it is very important. So coming to the next one, a basic set of belief that guide एक्शन। हम ये जो बात कर रहे हैं, हम 4 पॉइंट की बात कर रहे हैं। यदि फिलोसॉफिकल जो हमारा वर्ल्ड व्यूज है उसकी बात करने जा रहे हैं। क्या? पोस्ट पॉजिटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड प्रैग्मेटिज्म। ये 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला पोस्ट पॉजिटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड प्रैग्मेटिज्म। ये ऐसा नहीं है कि साइंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं कि आर्ट्स साइंस के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। Whenever we are talking about, let me come one by one in these 4 terminology, and the first is that post positivism, and you can say that what we observe and what we conclude. This is basically the theory of post positivism. And in this way, determination is very very important thing in any research, or not only research, in any work, है ना। हम तो रिसर्च पढ़ा रहे हैं इसलिए रिसर्च की बात कर रहे हैं, बट आपका ये जो डिटर्मिनेशन है, ये डिटर्मिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी काम के लिए। जैसे हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी सेवरल ऑफ यू जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर और मे बी हैविंग द मोबाइल एंड सेल फोन एंड सोच रहे होंगे चलो यार एक लेक्चर है, आई एम सॉरी टू से ऑल दिस थिंग्स, बट डोंट माइंड इट रियली द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, है ना। जो मैं ये फील करता हूँ, ऐसा हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ होता है, ठीक है। तो उनको लग रहा होगा एक है कोई सर, वो दे रहे हैं टॉक, ठीक है, सुनना है हमको, अपनी अटेंडेंस देनी है, हमको नंबर दिखाना है, और उसमें फाइनली जो है हमको उस बेस पर जो है हमारा इवैल्यूएशन होगा या नहीं भी होगा, डजंट मैटर, अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कितने डिटरमाइंड हैं किसी काम के लिए, किसी काम के लिए कितने डिटरमाइंड हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड ऐसे होगा कि डिटर्मिनेशन इज नॉट रियली अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स नॉट वेरी इजी थिंग्स, इट्स वेरी हार्ड एंड वेरी टफ थिंग्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूं कि सबको पता है कि हमको बॉडी में बहुत प्रॉब्लम होती है ना। हम डिजीज से आजकल देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को, 22 से 23 साल के स्टूडेंट्स को, या 30 साल के स्टूडेंट्स को, या यंग एज पीपल को, या मैन को या वुमेन को, स्पेशली बहुत सारी डिजीज होनी शुरू हो जा रही है। कौन कौन सी डिजीज? ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, है ना। ये जो आपका मोटापा है, ये सारी चीजों से। लेकिन सबको पता है कि हमको ये चीजें खानी कम है और हमको फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, सुबह एंड शाम 2 घंटा करनी है, या मिनिमम 1 घंटा करनी है। हम सोचते तो हैं, फेसबुक में हम देख रहे होते हैं, हम व्हाट्सएप में भी देख रहे होते हैं, हम जो है क्या बोलते हैं कि टेलीविजन में भी देख रहे होते हैं, ठीक है, सारी चीजें। हमें दूसरे का फिजिक बहुत पसंद आ रहा होता है, कितना अच्छा बना रखा है, लेकिन वो उस फिजिक के पीछे कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है कि इसने कितना ज्यादा त्याग किया होगा, कितना ज्यादा इसके बाद डिटर्मिनेशन रहा होगा, इसने एवरी डे कोई भी एक्सरसाइज, सिंगल एक्सरसाइज मिस नहीं की होगी, एंड ही has or she has taken a very balanced diet. Called one very good example of determination. Same thing in research also happening. That means
अगर आपने कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, चाहे वो एकेडमिकली ओरिएंटेड ज्यादा हो, चाहे वो रिसर्च ओरिएंटेड कम हो, डजंट मैटर, बट इफ यू आर डिटरमाइंड टू डू अ गुड रिसर्च एंड टू do some kind of contribution for the society, then no one can be, no one can, deviate from this determination, and you will definitely exceed, है ना, in some day that you will definitely produce a very good result. ये ऐसा नहीं है कि मैं छोटी जगह पर हूं तो मैं अच्छी रिसर्च नहीं कर सकता, मैं बड़ी जगह पर हूं तो मैं ही अच्छी रिसर्च करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये कहता है डिटर्मिनेशन। मेरे ख्याल से जो मैसेज कहना चाह रहा हूं वो आप समझ रहे होंगे और समझ भी गए होंगे। नाउ द सेकंड टर्म इज कमिंग रिडक्शनिज्म, है ना, दैट मीन्स डिस्क्राइबिंग अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। इट इज वेरी वेरी कॉमन थिंग। दैट मीन्स अगर आपके पास, जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल दें, हम आपको एक रूम में इंटर कराते हैं एंड द रूम इज नाउ हाईली स्कैटर्ड, है ना, कुछ भी उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, वहां पर ऑफिस बड़ा खराब है, बुक्स फैली हुई है, एंड देयर इज सो मेनी डस्ट एंड कबाड़ पड़ा हुआ है, प्लास्टिक पड़ा हुआ है, सारी चीजें पड़ी हुई है। तो दैट मीन्स द रूम इज हाईली कॉम्प्लेक्स, है ना। अब वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रूम को, हमारे बॉस ने बोला है कि इसको एक ऐसा रूम बनाना है कि इसको हाईली सोफिस्टिकेटेड रूम बनाना है, जिसमें इसमें मुझे एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करना है, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज काइंड हैविंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम डस्ट, है ना, एंड फ्रॉम सम काइंड ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। सो हमको इसको बढ़िया बनाना है, कैसे बनाएंगे? अब आपको एक ऐसा एक स्टोर रूम दे दिया गया जिसमें कबाड़ फैला हुआ है, तो अब आपके पास बड़ी प्रॉब्लम है ना। अगर आपके पास डिटर्मिनेशन नहीं है, सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन चाहिए। देखो, एक दूसरे लिंक होते जा रहे हैं दूसरे, कि हाँ, सर ने अगर दिया है, बॉस ने अगर दिया है, गाइड ने अगर दिया है, तो ये मेरे लिए भी अच्छी बात है, तो मुझे इस रूम को उस लायक बनाना है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से बहुत पहले आप लोगों ने कहानी भी पढ़ी होगी, एक मुझे याद नहीं है ऑथर का नाम, ठीक है ना, इंग्लिश में हुआ करती थी। तो अब जैसे आप रूम में एंटर किए, दरवाजा खोला, तो अचानक से कबूतर चमगादड़ भागने शुरू हो गए, एंड नाउ यू काइंड ऑफ यू स्कैर्ड कि अब मैं कैसे इसको साफ करूं यार, कहां से शुरू करूं? शुरू करने का कोई तरीका ही नहीं है कि इसको शुरू करता हूं तो ये प्रॉब्लम है, इसको शुरू करता हूं तो ये प्रॉब्लम है। देन यू हैव टू यूज एन अप्रोच ऑफ रिडक्शनिज्म। दैट मीन्स कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे, और डिस्क्राइब करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे, कहां से क्या क्या सामान हटाते जाना है और क्या क्या चीजें रखते जानी है और कैसे कैसे इसको मैनेज करना है। तो दैट इज बेसिकली द रिडक्शनिज्म अप्रोच, एंड सेम अप्रोच ऑल्सो कैन बी पॉसिबल इन द रिसर्च ऑल्सो, एंड इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिसर्च, है ना, क्योंकि रिसर्च से रिलेटेड ही है। नाउ अनदर थिंग इज दैट एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। So this is also very important. Empirical observation means whenever you see anything, then what will be your observation and how will you do the measurement in that way, so that the practical aspect is going to be feasible now. And जब ये सारा चीज हो जाएगा, सब चीज आप कर लेंगे, तो फाइनली आप जो थ्योरी आपने जो डेवलप की या उसको बनाया, तो उस चीज का आप क्या करेंगे? उसका वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो दिस इज कमिंग इन द पोस्ट पॉजिटिविज्म सेक्शन। आई होप कि मैं इसको समझाने में समझा पाया हूंगा आप लोगों को, एंड in that way, that means the one task is getting covered. So it is coming now the philosophical worldviews of post positivism. Now coming to the constructivism. जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमारे अंदर ये सारी चीजें, देखो, पोस्ट पॉजिटिविज्म से हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म भी जुड़ा हुआ है। डिटर्मिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम ये चीजें भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान में रखना है? वी हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जब तक हम सिचुएशन, प्रॉब्लम एंड इन सब चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक हम जो है किसी भी रिसर्च या किसी भी चीज को शुरुआत नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज के फाइनल आउटकम पर नहीं आ पाएंगे। तो जब कंस्ट्रक्टिविज्म में कोई पर्सन होता है, उसके पास अगर ये अप्रोच होती है कि ही इज कंस्ट्रक्टिव, है ना, तो every time the constructive person or the constructive researcher or the scientific personality is always having a very high level of understanding. Believe me, and maybe बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इस बात पर, वो एग्री भी करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप किसी भी चीज को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। Now second thing is coming under the constructivism heading is the multiple participants, meaning that means एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमने आपको दी, जैसे अभी मैंने रूम का एग्जांपल दिया। अब उस रूम में अगर अकेले साफ करने लग जाएं आप, तो बड़ा डिफिकल्ट है ना। लेकिन अगर आपके साथ वाला वो देख रहा है कि यार ये नया नया लड़का है, नया नया स्टूडेंट है और ये कर नहीं पाएगा, एंड द सीनियर मोस्ट पर्सन ऑफ दैट लेबोरेटरी इज नाउ जस्ट पास थ्रू दैट कॉरिडोर एंड ही हैज सीन दैट यू आर इन ट्रबल, देन ही अंडरस्टैंड
है ना, वो आपकी प्रॉब्लम को समझा, एंड देन जैसे ही वो प्रॉब्लम को समझा तो उसने बोला कोई बात नहीं यार, साथ ही हाथ बढ़ाना, आ जाओ बताते हैं हम, चलो कैसे करते हैं इसको। तो उसने स्टार्ट किया, तो मल्टीपल पार्टिसिपेंट आने शुरू हो गए। उसको देखा तो कोई दूसरा आया और तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे करके होते गए। लेकिन इसमें एक बड़ी अजीब चीज है, अगर इस मल्टीपल पार्टिसिपेंट में हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे या एक दूसरे से जेलस होंगे तो कभी भी हमारा काम सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कंस्ट्रक्टिविज्म हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जहां पर हम मल्टीपल पार्टिसिपेंट को साथ में लेके चलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो रिसर्च मेथोलॉजी पेपर है या रिसर्च जो पब्लिकेशन है, या हम जब हम इसको फाइनली पब्लिश करते हैं तो रेयरली कोई एक सिंगल ऑथर उसमें उस पेपर को पब्लिश किया होगा। That means there are number of co-authors, more than 10 and more than 50. Sometime you will never believe, I am in the science field and in nature and science, you will see that there are 3 and 4 pages of only author's name, only and only author's name. That means each and every author is having a very high level of understanding and there is no conflict between them. तो जो भी उनने कंट्रीब्यूशन किया, doesn't matter whether it is done for only one paragraph, one line and one idea, ठीक है ना, and they will incorporate that idea, and this idea is helping to them, and therefore the concept came multiple participant and meaning. Okay, that means now this is coming under the head of constructivism. Now coming to the another third one, the social and historical construction. It is very important also. Whenever we are doing the constructivism kind of research, then the social and historical construction, that means society, whatever, suppose you are living in a department, you are doing any research in the department, and let's say for example आपकी लैब में बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है ना, but in the same time in another lab there is not that much of research is going on, but that person is now your student, or sorry, your friend, good of friend. So what will be your duty is that at least motivate that person, or at least give some idea after reading her or his research problem, and therefore so that she or he also can participate and perform a very good research. Okay, so that is called you are constructing a social environment for you. So what will happen, that definitely in that department or in that particular kind of area, you will definitely getting recognized, and that recognition is now positive for you as well and positive for society as well. And therefore one day whatever act you have done today, that will going to become a history, है ना। एंड देन फाइनली अगर आप पास्ट को देखेंगे तो पास्ट का हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, आप अगर प्रेजेंट को कर रहे हैं तो आज हम जो कर रहे हैं ये कल के दिन में हिस्ट्री बनना है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आज आप अच्छा काम करेंगे, कल के दिन में डेफिनेटली इट विल बी हैविंग अ वेरी गुड हिस्टोरिकल इम्पैक्ट फॉर द सोसाइटी। एंड फाइनली जब ये सब चीजें कर लेंगे आप, तो फाइनली आप क्या करते हैं, एक थ्योरी को जनरेट करते हैं कि हाँ भाई इसने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ, इसने ऐसा नहीं किया था तो ऐसा नहीं हुआ। तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज ट्रांसफॉर्मेटिव। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव? बेसिकली ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब है, हम कई ऊपर 2-3 हेडिंग में ही बता चुके हैं, अगर ये रिसर्च सोसाइटी के या किसी आपके अलावा किसी दूसरे के काम ना आए, so we used to say this is not transformative. That means it has to transfer from one place to another place. It has to transfer from one person to another person. So hope that, for example, political way, है ना। अब आप कहेंगे सर ये political कहाँ से आ गया इसमें? Yes, of course. अगर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कंट्री की बात करें, है ना, तो दैट मीन्स दैट कंट्री इज ऑल्सो पॉलिटिकली गोइंग टू बी साउंड, है ना। दैट विल हैव अ मोर इम्पैक्ट compared to in front of the other country region. So it will be very, very good and important. That means that the research is getting now transformative. Suppose if you have done some, let's say for example, अभी just हुआ था COVID-19, अगर आपने वैक्सीन कोई बनाई है आपने की कंट्री ने, और ये वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है और इस वैक्सीन की कॉस्ट बहुत कम है, तो इस वैक्सीन को आप आसानी से दूसरे देशों में भी सप्लाई कर सकते हैं, और वहां पर भी कुछ न कुछ रोल साइंस का और अपने देश के कंट्रीब्यूशन का बता सकते हैं, ठीक है ना। एंड डेफिनेटली इट विल एनहांस द इम्पैक्ट ऑफ योर पॉलिटिकल काइंड ऑफ सिस्टम। ओके, नाउ कमिंग टू द अनदर वन, दैट द पावर एंड जस्टिस ओरिएंटेड। या ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च जब करेंगे तो डेफिनेटली दिस टर्म विल ऑल्सो कम, पावर एंड जस्टिस ओरिएंटेड। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब
ये नहीं है कि आप पावरफुल हो जाएं, या ठीक है पावरफुल हो जाएं डजंट मैटर, ठीक है हो जाएं, लेकिन जस्टिस भी होना है साथ में। ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च करी, फॉर एग्जांपल मैंने एक रिसर्च करी कि मैं एक ऐसा कोई वेपन बनाता हूं, दैट वेपन इज नाउ कैन बी यूज्ड फॉर सम काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर्पसेस, है ना, so it is not coming into the justice oriented section. So that means the research should be in such a way, yes it should give you power, but the power should not get misused. For example nuclear energy का use हम कई तरीके से कर सकते हैं. We can use this nuclear energy for making bomb and destroying the some country or maybe like some spaces and some places, है ना, but it is not justice oriented because nature cannot allow you and such kind of whatever work you are doing like this. Okay, so it is highly unjustified and that's why it is not justice oriented. Second thing is whenever you are doing transformative research, it is not limited to up to you only, it should be collaborative. For example आप वहां बैठे हैं, आपने कोई आइडिया आपको आया थोड़ा सा आपको, लेकिन वहां प्रॉब्लम है कि आपको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा, बट आइडिया इज वेरी गुड और आई ऑल्सो रियलाइज कि आइडिया बहुत अच्छा है बट स्टूडेंट के पास फैसिलिटीज नहीं है या प्रॉब्लम्स हैं या दिक्कतें हैं, तो ऐसा करते हैं कि देन वी कोलैबोरेट, ठीक है आप आइडिया पे काम करो एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू द फैसिलिटी। सेम एज जो हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल जो या इंटरनेशनल जो हमारे जो कोलैबोरेशन है वो ऐसी इसी तरीके से होते हैं, क्या कि हमारे पास कुछ है आपके पास कुछ है एंड फाइनली हम जो है किसी एक पर्टिकुलर आउटकम पर पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल जो आज की रिसर्च है वो आज की रिसर्च सिर्फ एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, इट इज मल्टीपल सब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना। आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी फिजिसिस्ट हैं, है ना, उनने जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाए वो इंस्ट्रूमेंट उनके हमेशा बहुत ज्यादा काम नहीं आए। वो इंस्ट्रूमेंट किसके काम आए? केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, है ना, एंड बायोमेडिकल साइंस के। लेकिन देखा जाए तो फिजिसिस्ट ने जो इंस्ट्रूमेंट बनाए उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट किसका लगा? मैथमेटिशियन का, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि सारी चीजें कोलैबोरेटिव हैं। तो कहने का मतलब हम अगर एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन से स्टार्ट करें तो वी नीड मैथमेटिशियन, we need physician, and for the application purpose we need a life science person or chemistry person. So like this it should be collaborative, है ना, and change oriented. That means एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार हम ऐसा कोट करते हैं कि यार हमारे जमाने में तो ऐसा हुआ करता था और यहाँ पर भाई तुम ऐसा कैसे कर ले रहे हो? भाई ऐसा नहीं है, आपके जमाने में हुआ करता होगा, ठीक है मानते हैं, आपके जमाने में आपकी बारात बैलगाड़ी में आती थी, ठीक है मानते हैं, बट हमारे जमाने में बैलगाड़ी में नहीं आती है। हमारे जमाने में फैसिलिटीज हैं, हमारे जमाने में तो शादियां ऑनलाइन होने लगी आजकल, है ना, लड़का वहां बैठा है, लड़की यहाँ बैठी है, खत्म, शादी हो गई पूरी, है ना, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। सो दैट मीन्स वी शुड एक्सेप्ट द चेंज, whatever the change is going to be happen here, then we should accept the change, and this is coming under the category of transformative research. It is very very important, है ना। एंड तो आप समझ रहे होंगे कि हमने पोस्ट पॉजिटिविज्म को डिस्कस किया, कंस्ट्रक्टिविज्म को डिस्कस किया एंड ट्रांसफॉर्मेटिव को डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू दैट this pragmatism means we are basically the practically oriented, and practical aspect क्या है इसको हम देखना चाहते हैं, है ना। that means whatever research we have done, अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था न्यूक्लियर एनर्जी वाली बात हमने बोली थी, या एक गन वाली बात बताते हैं, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन क्या होगा? भाई आपने रिसर्च कर दी, ठीक है, आपने बना दिया, ठीक है, बट इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने जा रहे हैं? इसके दुष्प्रभाव कहें या इसके प्रभाव क्या होने वाले हैं, है ना। तो ये प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये प्रभाव नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों चीजें। ये डिपेंड करता है कि जो प्रभाव को यूज करने वाले लोग हैं या जो उस रिसर्च को यूज करने वाले लोग हैं वो जस्टिस ओरिएंटेड है कि नहीं है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दैट वे दैट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन कैन बी डिस्कस ऑल्सो in that section, and that's why the pragmatism is written here. Now problem centered, अब आप प्रॉब्लम पर सेंटर्ड करोगे। अब आपने सपोज कोई प्रॉब्लम आपने क्रिएट हुई, जैसे फॉर एग्जांपल फिर से आते हैं, कोविड-19 की प्रॉब्लम क्रिएट हुई, एंड नाउ every scientist, not only I would say not only mathematician, not only physicist, not only chemistry, not only biologist, every mathematician, even घर के व्यक्ति भी, जो हमारी घर में माताएं हैं, है ना, जो पुराने लोग हैं, वो भी इस पूरे इस प्रॉब्लम पर पूरी तरीके से फोकस हो गए, है ना, और अपने अपने तरीके से रेमेडीज करने लगे। फॉर एग्जांपल घर के लोग जो है काढ़ा बना के पीने लगे, है ना, उनने बोला नहीं ये होम्योपैथी दवा है, ये आयुर्वेदिक दवा है, ये सारी चीजें हैं, तो दैट दे ऑल आर प्रॉब्लम सेंटर्ड। सिमिलरली
the scientific person, those who are doing a very good and rational kind of science, they are also oriented in that. That's why the such kind of vaccine, आप vaccine का अगर जो generation time देखेंगे, it's not so easy to develop a vaccine in 1 and 2 year. Okay, but now the change is oriented. For example, the transformative research की बात करें, the change is oriented, मतलब change oriented जो research यहाँ पर हो रही है, इसके कारण जो हम वैक्सीन डेवलप कर पाए हैं, ये वैक्सीन इसी के कारण कि अभी जो 10 साल में जो वैक्सीन बनती थी, वो वैक्सीन जो है हमारे 2 साल के अंदर बन के इम्प्लीमेंट भी हो गया एंड इसके रिजल्ट आने भी शुरू हो गए, है ना. सो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दैट वन, है ना. एंड दैट इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन की क्या हुआ और क्या इसका आगे रिजल्ट आया, ठीक है ना. प्लूरलिस्टिक, दैट मीन्स रिकॉग्निशन ऑफ मोर देन वन फाइनल प्रिंसिपल. अब ये जो अभी मैंने बात की थी, ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी एक रिसर्च का एक ही प्रिंसिपल होगा, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है. दैट मीन्स अगर उस रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हुई हैं और उस पर लोगों को सक्सेस मिली है और उस पर एक कहने का मतलब एक गुड काइंड ऑफ हमको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सक्सेस मिली है, तो दैट मीन्स यू हैव टू बी रिकॉग्नाइज ऑल दीज principle whatever associated with that research. So that means it should be, or we should be pluralistic and real world practice oriented. और real world ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी कह रहे हैं और कुछ भी हो जा रहा है, ऐसा नहीं. दैट मीन्स जो कंडीशन है वो रियल में होनी चाहिए, या जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो रियल में होना चाहिए, ठीक है ना. ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है और उसको हम जो है डाटा एनालिसिस करके बता रहे हैं एंड फाइनली फॉर गेटिंग द डिग्री एंड समथिंग लाइक दिस वी आर पब्लिशिंग लाइक एंड एनीथिंग एंड फाइनली वी आर गेटिंग डिग्री, बट लास्ट टाइम जब पता लगा है तो फेक रिजल्ट है ना, सारा गलत है, तो नो वन विल बिलीव. और जब बिलीव की बात आएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन पहले कैच होगा, फिर उसके बाद दूसरा पर्सन कैच होगा उससे रिलेटेड, फिर उसके बाद तीसरा पर्सन कैच होगा, फाइनली एक ग्रुप कैच होगा, एक ग्रुप से फिर एक रीजन कैच होगा, एक रीजन से फिर एक पूरा स्टेट कैच होगा, एंड फाइनली दैट हम एक हाइपोथेसिस बना लेंगे कि यहाँ से जो रिसर्च आती है, यहाँ से जो पब्लिकेशन आता है, यहाँ से जो रिसर्च प्रोड्यूस करते हैं, दे आर नॉट रिलायबल एट ऑल. ओके, सो दिस इज बेसिकली द बेसिक सेट ऑफ बिलीव्स that guide action. So again I am asking question to the students कि अभी जो ये 4 मैंने टॉपिक बताए, इस टॉपिक पर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है. I am just stopping for let's say 30 seconds. No sir. Okay, so hope you are seeing the slide, है ना, सारी स्लाइड विजिबल है? Yes sir. Yes, sir. Okay, Yes sir. ओके फाइन. सो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहे हैं. Yes, आ रहा है सर. बढ़िया सर, बढ़िया. ठीक है, चलिए. सो नेक्स्ट फिर से एक दो स्लाइड और डिस्कस करते हैं. सो पोस्ट पॉजिटिविस्ट वर्ल्ड व्यूज, जिसमें हम एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ साइंटिफिक रिसर्च मेथड की बात करेंगे एंड एम्पिरिकल साइंस, दैट मींस एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल की बात करेंगे. तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रिसर्च और मेथड की जब हम बात करते हैं तो ये अभी भी हमें देखने को मिलती है कई जगहों पर, ठीक है ना, कि हम एक कॉमन सिस्टम से, कॉमन टेक्निक से किसी रिसर्च को कर रहे होते हैं एंड फाइनली जो है वो फिर हमें लास्ट में एक तरीके से रिजल्ट देती है. ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं देती है, बट क्विक रिजल्ट देने में थोड़ा सा डिले होता है. लेकिन आजकल आपने देखा होगा, क्योंकि यू आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, जैसे ड्यूरिंग कोविड there is a oxygen pulse rate determination or kind of oximeter kind of things this scientists or scientific community or pharmaceutical community have developed. Okay, and but at the same time I was also looking just the app in the mobile phone, and this mobile phone, if you download such kind of app and you put your just finger in front of the camera and then just switch on that app, सो एक कैमरा क्या करता है कि इस ये ऐप जो है कैमरे से एक लाइट जनरेट करता है, एक फ्लैश जनरेट करता है, एंड दैट फ्लैश विल बी नाउ जस्ट टचिंग योर स्किन एंड मे बी देयर इज सम मैकेनिज्म एंड फाइनली इट गिव्स यू ऑल्सो some good result, not a very kind of fake result. Why good result I am saying? Because at the same time I also monitor the oximeter, my oxygen rate from the oximeter, and it almost came near about the same thing. So you can think that कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ साइंटिफिक रिसर्च मेथड कि जब ऑक्सोमीटर ऑक्सोमीटर की बात करेंगे तो उस समय इस तरीके के ऑक्सोमीटर नहीं हुआ करते थे, लेकिन रिजल्ट उनके भी सही आते थे. जैसे आपका ब्लड शुगर है ना, ये सारी चीजें हैं. आजकल आप घर में ही आपका एक ब्लड शुगर मशीन रखे रहते हैं, आसानी से आप एक
सिंपली लगाता है फिंगर पर, एक आपका ड्रॉप आता है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ मेरा ब्लड शुगर इतना है और ये सारी चीजें हैं। सो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कैसे जो पॉजिटिविस्ट था या पॉजिटिविस्ट वर्ल्ड व्यूज था वो कैसे धीरे धीरे चेंज हुआ, एंड पहले क्या था और बाद में क्या हुआ, है ना। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्ट पॉजिटिविस्ट, है ना। एंड लेटर ऑन द एम्पेरिकल साइंस, दैट मीन एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल, जब हमने करने शुरू किए तो धीरे धीरे करके ये सारी चीजें हमें रियलाइज हुई कि हम इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात आएगी तो दो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे, या उनको हम डिस्कस नहीं भी करें तो आप उसको सीधे सीधे समझ सकते हैं। चैलेंजेस द नोशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना। दैट मीन्स जो ट्रूथ है, जो ट्रूथ था उसको चैलेंज, कि उसमें अगर कोई एरर है तो उसको चैलेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है ना। सेम थिंग डिटर्मिनिस्टिक फिलोसॉफी इन विच कॉजेज डिटरमाइन इफेक्ट, ठीक है ना। So that means you are, developing a philosophy that which causes a determined effects, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च वो गलत नहीं थी, उसका एक अपना एक वो था, लेकिन जब हम धीरे धीरे एम्पेरिकल साइंस की ओर बढ़ते हैं, या अभी जो है हम एडवांस या कटिंग एज साइंस की ओर बढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें बेस्ड ऑन पोस्ट पॉजिटिविज्म में ही सक्सेस हो पाई। क्योंकि वो डाटा को भाई हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ग्लूकोमीटर है या जो ऑक्सीमीटर है वो सही रीडिंग दे रहा है। हमारे पास कोई ना कोई एक बेसिक या पुराना सेटअप होना चाहिए जिससे हम आज तक मेजर करते हुए आए हैं, और वो मेजर करते हुए आए हैं तो हमें पता लग गया कि इसका मतलब इसमें इतना आया था और यहाँ भी इतना रहा, इसका मतलब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमने जो डेवलप किया है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज रियली गुड, एंड दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ एक तरीके से नया एक आविष्कार है इस फील्ड में कि हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये धीरे धीरे करके इस तरीके से आते जाएंगे। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, है ना। आई विल शेयर दिस स्लाइड टू यू, क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारी चीजें वहां डिस्कस कर चुका हूँ, अदरवाइज आपका कुछ टॉपिक यहाँ पर कम हो जाएगा, मैंने टारगेट किया है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, ये वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ पोस्ट पॉजिटिविज्म, है ना, वर्ल्ड व्यूज। दैट इज नॉलेज इज कंजेक्चुरल, दैट मीन्स इट कैन नॉट प्रूव हाइपोथेसिस। If it cannot prove hypothesis, that means we state failure to reject the hypothesis or accept it. अगर ये hypothesis जो पुरानी दी गई है या हमने ही जो क्रिएट की है उसको अगर ये नहीं प्रूव कर पाता है तो या तो हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को ही रिजेक्ट कर देंगे कि हमारा नहीं भी गलत है सारी चीजें, या फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा कि हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो दो ही चीजें हो सकती है यहाँ पर, तो या तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर हम उसको रिजेक्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लेम। कोई भी रिसर्च आप करते हैं तो आप क्लेम करते हैं, है ना, आप स्टेट करते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई पेपर लिखते हैं, जब भी कोई आप बात करते हैं तो उसे कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड करते समय ये बोलते हैं कि हमने जो है ये काम किया था, एंड इन समरी और दस दैट वी हैव डन दिस रिसर्च एंड दिस इज शोइंग दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, एंड एट द फाइनल स्टेज दैट दिस मे बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर द for these XYZ purposes, है ना। तो that means start with deductively testing a theory. That means आप एक थ्योरी को डिडक्टिव वे में टेस्ट करते जा रहे हैं, यानी कि एक आपने थ्योरी जब डेवलप की, उसके बाद दूसरा आपने थोड़ा सा उसके आगे बढ़े, यानी कि वाली थ्योरी में थोड़ा सा एक आपको सहारा मिला कि हाँ ठीक है भाई, यहाँ से ये A से B हम पहुंच गए, तो धीरे धीरे करके इन डिडक्टिव मैनर वी आर टेस्टिंग अ थ्योरी। दैट मीन्स once you deduct the theory, whatever it is going to be happen, or whatever it was, it was on the literature reported, then that means at the final stage, once you prove that, you will feel very happy, and then only happiness will motivate you for making a claims, not a sadness and not a kind of things. Okay, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रबिश आप तैयार करें और साथ में फाइनली ये कहते हैं कि नहीं ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हो गया, खत्म, है ना। बट अगर पीछे क्या, क्यों, कैसे की बात करें तो उसका आंसर आपके पास नहीं है। तो इसीलिए आपको किससे स्टार्ट करना है, डिडक्टिव टेस्टिंग अ थ्योरी से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू द डाटा एविडेंस एंड रेशनल कंसिडरेशन of shape and rational consideration for shaping the knowledge. For example, collecting information through use of instrument. ये जो मैं बार बार आपसे बोल रहा था पहले भी कि until unless we are not having instrument, then we cannot collect the data. For example, अब आप खुद ही देखो कि at present हम live example हैं instrument user के। आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप अपना फोन यूज कर रहे हैं, आप अपना नेट यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ से अपना कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, मैंने ये पीपीटी बनाई, सारी चीजें हुई, सब कुछ हुआ, एंड फाइनली
by based on or by using such kind of instrument, we are only able to communicate each other. See, कितना ब्यूटीफुल वर्ड बन गया, आप खुद ही सोचो. द साइंस प्रोग्रेस सो मच वेल. आप इतनी दूर बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे के से डायरेक्टली सामने बात कर रहे हैं और मैं डायरेक्टली एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना. तो दिस इज बेसिकली द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इट इज पॉसिबल ओनली बाय द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओनली. इट इज नॉट पॉसिबल कि आप वहां से अगर हम कहें चलो ठीक है मैम ऐसा करते हैं, फोन पर हम बात करते हैं और आप फोन मिलाइए, हम फोन का स्पीकर ऑन रखिए, ऐसा करेंगे. तो ठीक है, अप टू सम एक्सटेंट वी कैन डू, बट we cannot do in a large extent. This is not really possible. ठीक है ना. Now coming to the fourth number, research seeks to develop relevant and true statement. हमेशा ये ध्यान रखना, किसी भी रिसर्च में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पर आपका कुछ न कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए और डेफिनेटली दैट डेवलपमेंट शुड बी communicated by making true statement. It's not the statement should not be false, है ना. Otherwise what will happen that no one will rely on your research, ठीक है ना. It comes or it also includes advances the understanding of relationship among variables. That means whatever variables are present. अब variables की बात करें तो बहुत सारे हैं, मैथमेटिक्स में अलग चले जाएंगे, लाइफ में अलग आ जाएंगे, और हम नॉर्मल जो कॉमन की बात, ह्यूमन की बात करें तो देयर आर सेवरल काइंड ऑफ वेरिएबल्स, है ना. We all are human. We are all are having different kind of nature, race, ethnicity, and each and so we are also considered as a variables. So, but what relationship we are having now today? Suddenly one relationship now made, है ना. मैम के थ्रू आपका हमारा एक रिलेशनशिप बना स्टूडेंट टीचर का. सो ये जो सारी चीजें हैं तो ये एडवांसेस हैं, ये बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट के कारण ही हुआ है एंड बिकॉज ऑफ रिसर्च को समझने की जो हमारा डिटर्मिनेशन था, जो हमारी लालसा थी, या उस मेथड को समझने की जो हमारी इच्छा थी, उसके कारण हुआ है. तो वी कैन नेवर इग्नोर दीज थिंग्स, है ना. बीइंग ऑब्जेक्टिव इज वेरी एसेंशियल. सी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट डायरेक्टली रिलेट टू द डिटर्मिनेशन फैक्टर. अगर आप ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेटेड नहीं हैं तो इसका मतलब आपकी रिसर्च डेफिनेटली एक सर्टेन टाइम पर आकर के क्या हो जाएगी, डवाडोल हो जाएगी, प्रॉब्लम में आ जाएगी. आप समझ नहीं पाएंगे कि आप करना क्या चाह रहे थे और करना क्या है आपको. ये वैसा ही है जैसे मैं ये कहूँ आपसे कि आप जो है आपके पास 2 दिन है और 2 दिन में जाकर के आप पिथौरागढ़ की यूनिवर्सिटी से जाकर के आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाकर के इस सैंपल को एनालिसिस करें और सैंपल लेके आ जाए और तीसरे दिन यहाँ पहुंच जाए, है ना. बट आपका क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं हुआ. आपने बोला अरे वाह चलो ठीक हो गया यार, दिल्ली में तो मेरी दीदी भी रहती है, मेरी भाई भी रहता है, मेरी बहन भी रहती है, ऐसा करें उनसे भी मिल लेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा. तो दैट मीन्स यू आर नॉट ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, है ना. क्यों? क्योंकि आप अपने रिसर्च के लिए नहीं जा रहे हैं, आप साथ में उसके लिए भी जा रहे हैं. तो डेफिनेटली जो आपका डाटा कलेक्शन है, या डेफिनेटली जो आपका डाटा एनालिसिस है, या डेफिनेटली जो आपका तरीका होगा, जो भी होगा, वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम में आएगा और आप या तो गलत डाटा कलेक्ट करके लाएंगे या गलत इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके लाएंगे, या मे भी हो सकता है डाटा इकट्ठा करके ना ला पाए. क्यों? क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट ओरिएंटेशन हैविंग. सो बीइंग ऑब्जेक्टिव इज वेरी एसेंशियल. मींस आप किस तरीके से काम करते हैं ये बहुत, और किस रीजन से काम करते हैं और किस लिए काम करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. ये भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, बट आई विल जस्ट हाईलाइट 2 और 3 पॉइंट. कंस्ट्रक्टिविज्म, है ना, जिसको हमने पहले भी वहां डिस्कस किया. तो जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो अगर पहला पॉइंट हम इसमें देखें जो स्लाइड में यहाँ पर मेंशन है, दैट इज द बिलीफ that individual seeks understanding of the world. This is the first sentence I would say, and based on that only it is possible to become a constructivist, है ना. And that means the belief that people develop subjective meaning of their experiences. और कोई भी बिलीफ जब कोई डेवलप होता है या कोई भी जब किसी के बारे में हम धारणा बनाते हैं तो ये उनके एक्सपीरियंस पे होता है. जैसे सपोज हम ही बात करें, आपस में बात करें, हम आपसे बात करते रहे, इसी तरीके से हम 2-3 लेक्चर और देते रहे, तो होगा क्या, कुछ दिनों बाद या 1 या 2 महीने बाद आपका मेरे प्रति एक राय डेवलप हो जाएगी, है ना, एक बिलीफ क्रिएट हो जाएगा, है ना. और वो बिलीफ नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड एवरेज भी हो सकता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो दैट इज बेसिकली द बिलीफ दैट पीपल डेवलप सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, है ना, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही वो होगा. तो ऐसी रिसर्च भी होती है. तो रिसर्च में जब हम रिसर्च करते जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 0 से एंड फाइनली जब हमको पूरे 5 साल हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि व्हेन आई एंटर्ड इन अ पर्टिकुलर लेबोरेटरी एंड वर्कड फॉर इन दैट लेबोरेटरी फॉर 4 to 5 years, then the day will come when I will be out from the door of this laboratory, and what I will have
after passing out from that door. This is very very important. Okay, and same thing, the guide should also practicize the same thing. जो रिसर्च सुपरवाइजर है उसको भी यही प्रैक्टिसाइज करना चाहिए कि जिस दिन आप इस लेबोरेटरी से, इस दरवाजे से बाहर जाओगे तो आपके पास क्या होगा, क्या आपने अचीव किया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए आप सबको जो है इस तरीके से काम करना है कि अदरवाइज ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है भाई 5 साल बीत गए, काम किया, सारी चीजें हुई और फाइनली एक कॉपी पेस्ट कट करके एक थीसिस बनाई, सबमिट किया, जैसे तैसे वो भी हमने पास करा दी, है ना. एंड फाइनली कल के दिन में जब निकलोगे तो होगा क्या, आप एक चौराहे पर खड़े होगे. एंड ये बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है. आपके पास डिग्री तो पीएचडी की है, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख रहे हो, है ना, और जब आप किसी को इंट्रोडक्शन देते हो, आई एम डॉक्टर XYZ एंड बट आई एम जॉबलेस, आई एम नॉट हैविंग एनी जॉब, ठीक है ना, और आई एम नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, है ना, तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होगी उस समय. तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए. तो ये जो बात मैंने बोली, ये कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर नहीं आती है, ठीक है ना. इसका मतलब इसका जस्ट उल्टा कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आता है. तो आप किसी अब रिसर्च मेथोलॉजी को भी अगर समझें तो रिसर्च मेथोलॉजी भी यही कहती है, जब कोई दो लोग आपस में डिबेट कर रहे होते हैं और उसमें से हमें क्या साबित करना है कि एक आदमी को गलत साबित करना है और एक आदमी को सही साबित करना है, ठीक है ना. तो कहने का मतलब है कि हम दोनों ही आदमी को सही साबित नहीं कर पा रहे हैं, या जिस आदमी को हमें सही साबित करना है उसको हम सही साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो गलत भी साबित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना. तो दैट मीन्स उतना ही नॉलेज है, लिमिटेड है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज ऑटोमेटिकली नाउ इज करेक्ट, है ना, फ्रेम. सो ये सारी चीजें हैं. तो धीरे धीरे करके जब आप नीचे आएंगे, नाउ जस्ट रीड 2 or 3 more पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर्स फोकस ऑन द प्रोसेस एंड इंटरेक्शंस. जब भी कभी रिसर्च या रिसर्च मेथोलॉजी की बात होती है तो इसमें देखा जाएगा, आपने देखा होगा, हम क्यों सेमिनार करते हैं, क्यों कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ये बड़ा एक क्वेश्चन है. शुरू में हमें लगता था कि यार ये सब वैसे ही है, कोई नई चीज है, हमें भी खुद लगता था. लेकिन धीरे धीरे जब आज हम इस दौर पर पहुंच गए तो हमें लगता नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि हमको जो है इंटरेक्शन करना है एक दूसरे से. और इंटरेक्शन का पुराने समय में, आज तो ठीक है ये ऑनलाइन जरिया हमारे पास है, बट पुराने टाइम पर या आज से जस्ट 2 या 3 साल या 5 साल पहले भी चले जाएं, 10 साल पहले भी चले जाएं, एक ही तरीका सबसे अच्छा हुआ करता था, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस का. एंड उस दौरान हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे. सब लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन देते थे और बहुत सारे लोग बैठे रहते थे. जिसके फील्ड का प्रेजेंटेशन जैसे आया तो उसने उस व्यक्ति से इंटरेक्ट करना शुरू किया, एंड देन इट बिकेम नाउ कोलैबोरेटिव वर्क, एंड फाइनली द रिसर्च नाउ गेट एनहांस्ड. So there are such kind of, so many exercises happening in the past, so that the research is getting, more elaborated manner. And now today it is just change the shape and it is change oriented. And that's why today you are sitting there, I am sitting here, and we are discussing about our thought process and sharing the knowledge among all the audience, whosoever is joined in that platform. Okay. Now the another point is that recognition that researchers personal background shape and interpretation and the meaning. It is called interpretivism. ये बड़ा important है. That means किसी भी रिसर्चर का रिकॉग्निशन तब होगा जब वो अपनी रिसर्च को किसी वर्ल्ड वाइड व्यूज के या किसी वर्ल्ड लेवल के प्लेटफॉर्म में एक्सप्लेन करेगा, बताएगा, डिस्कस करेगा, एंड उसका जो बैकग्राउंड शेप होगा या बैकग्राउंड होगा उसको एक नया शेप मिलेगा. एंड धीरे धीरे जो है एक कंस्ट्रक्टिविज्म की ओर जाते जाते वो एक इंटरप्रेटिविज्म की ओर जाना शुरू कर देगा, है ना. नाउ पीपल विल इंटरप्रेट देयर रिजल्ट एंड पीपल विल इंटरप्रेट. दैट्स व्हाई आपने देखा होगा साइटेशन क्यों बढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि आपका H इंडेक्स क्यों बढ़ता है, आपने देखा होगा आपका I10 इंडेक्स क्यों बढ़ता है. इसीलिए बढ़ता है कि जिसकी रिसर्च जितनी रिकॉग्नाइज, उसका उतना ज्यादा साइटेशन, उतनी ज्यादा रिसर्च, या उतनी ज्यादा, या क्या बोलेंगे कि एक तरीके से वो अपने रिसर्च को लेकर के फेमस है इस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में या इस इंटरनेशनल साइंटिफिक एरिना में या प्लेटफॉर्म में, ठीक है. So now I am skipping this slide because we have discussed so many things in the previous as well as here also. Now coming to okay, now this can also be skipped because the same thing, and you can read it, and अगर इसके बाद भी रीडिंग करने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे जरूर पूछेंगे, ठीक है ना. Now coming to the transformative worldviews, इसमें थोड़ा सा 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहला, develop from belief that research method do not fit or marginalized individuals, है ना. एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो whenever we are discussing about these things, so that means we are discussing that how one research is
is getting transformed from one place to another place. If the research is not transformative, that means you can say that this research is not having a very good impact. रिसर्च अगर ट्रांसफॉर्मेटिव होगी ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि उस रिसर्च का कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा, बहुत कम होगा, या तो बहुत कम होगा या फिर नहीं होगा, दोनों चीजें होने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो ये एक बड़ा एक जो पूरा जो स्लाइड में हमने लिखा है पॉइंट वाइज को पढ़ेंगे, है ना, तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसको भी हम छोड़ देते हैं, इसमें भी कोई ज्यादा वो नहीं है क्योंकि हम पहले बहुत ज्यादा जो टेबल थी उसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. ये मैंने जो एक्चुअली जो स्लाइड को मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, ये इसलिए रखा है कि अगर आप टेबल पढ़ें तो टेबल पढ़ने के बाद अगर आपको उसको एक्सप्लेन करना ना आए तो आप इन स्लाइड में जाएंगे तो आप इनको आसानी से वन बाय वन एक्सप्लेन करके उससे कनेक्ट करेंगे तो आप समझ जाएंगे. एक्चुअली दिस वाज बेसिकली द पर्पस फॉर दिस वन. Okay, so now principles of pragmatism, and yes, this is also I have discussed, but here I would like to discuss this quote, very important, not this quote, before this one, no commitment to one philosophy or method, है ना, ये बड़ा important है कि किसी भी रिसर्चर का ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक फिलोसफी और एक मेथड के लिए कमिटेड हो, है ना, अदरवाइज रिसर्च नहीं हो पाएगी, फिर वो रिजिडिटी हो जाएगी. ठीक है ना. अगर आपको मालूम है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, फिर से मैं एक एग्जांपल पुट अप कर रहा हूं, हमने कोविड शील्ड बनाई, कोवैक्सीन बनाई, एस्ट्राजेनेटिन वाले ने वैक्सीन बनाई, देयर आर सो मेनी वैक्सीन नाउ क्रिएटेड, बट it is the scientific rational or scientific argument that every vaccine is working. Okay, तो अगर मैं ये बात बोलूं कि नहीं भाई मैं कोविड शील्ड ही लगाऊंगा, नहीं मैं कोवैक्सीन ही लगाऊंगा, नहीं मैं एस्ट्राजेनेटिन वाली ही लगाऊंगा, तो दैट मीन्स व्हाट विल हैपन? The problem is that means you will not believe, and that there will be always the kind of problem associated with the particular race or particular community of the research community, where the research is now done very good, but you are not believing on them. So it should not be like that. कि no commitment should to one philosophy or method. Commitment एक philosophy और एक method के लिए नहीं होना चाहिए. Method अलग हो सकते हैं, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है ना, काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं, रिजल्ट फाइनली एक अलग आएगा, ठीक है ना, वो एक अलग चीज है. सो अनदर थिंग इज दैट लुक एट मेनी वेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा एंड कंपेयरिंग इट. दैट मीन्स वी कॉल इट ट्रायंगुलेशन, है ना, ट्रायंगल एक फॉर्म में बना. दैट मीन्स आपने बहुत सारे डाटा को कलेक्ट किया और उस डाटा को आपने एक एंगल से नहीं देखा, उस डाटा को आपने बहुत सारे एंगल से एनालिसिस किया. सपोज आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं, आप एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर यूज कर रहे हो, बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू द केमिस्ट्री फील्ड, तो इट इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड. ठीक है ना. अब वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर यूज करते समय आपको एक ऐसी अनयूजुअल चीज दिखाई दी कि जो नॉर्मली होती नहीं है, यूवी विजिबल की मतलब लिमिट से बाहर है वो. ठीक है ना. अब आपको लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब या तो ये इंस्ट्रूमेंट एरर है या फिर मेरा सैंपल इम्प्योर है. ऐसा नहीं है. अगर आप इंस्ट्रूमेंट एरर है तो सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन है डाउट है आपको कि इंस्ट्रूमेंट एरर है, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट एरर को जैसे जैसे रेक्टिफाई कर सकते हो उतने तरीके यूज करोगे. फॉर एग्जाम्पल आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, एक इंस्ट्रूमेंट में लिया, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में लिया, तीसरे इंस्ट्रूमेंट में लिया, चौथे इंस्ट्रूमेंट में लिया, आपने सारे इंस्ट्रूमेंट चेक कर लिए, दैट मीन्स देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट एरर, दिस इज समथिंग एल्स. नाउ यू हैव टेकन द सैंपल एरर. अब आप सैंपल एरर की बात करो तो आपने फिर अलग अलग तरीके से सैंपल बनाना शुरू किए, यानी कि जितने पॉसिबल वे से ये सैंपल बन सकता था उतने पॉसिबल वे से आपने सैंपल बनाया, एंड देन यू हैव चेक द सेम थिंग एंड यू आर गेटिंग अगेन द सेम थिंग. तो दैट मीन्स वॉट एवर यू हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द कलेक्टिंग ऑफ डाटा एंड कंपेयरिंग ऑफ डाटा, दैट मीन्स initially you were thinking that this is error and I am going to skip it, but finally the one clever or one very high or rational kind of person or thinker came and that tried in every that tried this sample in every instrument and he found that कि भाई नहीं ये error तो नहीं है, this is something going to be unusual. and now अब आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, एक प्रॉब्लम आपने अपनी रिसर्च के लिए आइडेंटिफाई कर ली. अगर इस प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन, चलो ठीक है मान लेते हैं एरर ही है, इस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम आपने सोसाइटी को दे दिया और ये बता दिया कि ऐसा करोगे तो ये एरर आएगी, या अगर एरर नहीं है तो अगर ये ऐसा है तो ऐसा आ रहा है, और उसका एक्सप्लेनेशन आपने दे दिया,
that means you have contributed a lot for the society, है ना? And this is why called principles of pragmatic world views, है ना? यही प्रिंसिपल है, यही तरीका है कि pragmatic मतलब प्रैक्टिकली आप कर रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी रैंडमली कोई चीज मिल गई, ठीक है? That means the famous quote comes, truth is what works at that time. That means ये जो सच है इसको आप बदल नहीं सकते, ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना? अब इसको नहीं बदल सकते, हाँ ये हो क्यों रहा है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड नाउ बेस्ड ऑन दैट you have contributed a very good science for the community and for the society. And this is basically the best example of, I would say, for the pragmatic research or pragmatic world views. Okay. मेरे ख्याल से ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, स्टूडेंट बोर्ड्स तो नहीं हो रहा क्योंकि 1 घंटे से ऊपर चला गया है मैडम? नहीं सर। तो अभी मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ ना? यस। Okay, now a very important aspect coming for the all researchers, I would say, जहां पर हम ये जो खिचड़ी दिख रही है तीन चीजों की, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स मेथड, है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मुझे लगता है कि सबको शायद ये वाला पसंद भी बहुत ज्यादा आएगा, आई होप सो। कि ये क्या है क्वांटिटेटिव की जब हम बात करते हैं, सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव, दैट क्वांटिटेटिव कंटेन्स बेसिकली पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म. That means positivism and post-positivism. ठीक है? And whenever we are talking about qualitative, and it is always basically, focus or give more emphasis on constructivism as well as the transformative research. This is very important, है ना? तो अब आप सोच लीजिए कि इसमें से इन दो में से कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली अगर आप बात करेंगे तो सेकंड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव. क्यों? क्योंकि वहां पर दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं. क्या? कंस्ट्रक्टिविज्म एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेटिव. एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव, तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म. ठीक है ना? अभी मैं इनको फिर से बढ़िया तरीके से और डिस्कस करूंगा. नाउ कमिंग टू द मिक्स मेथड, जहां मिक्स मेथड की बात आती है, इट रियली कम्स इन द प्रैग्मेटिज्म, और ये ओनली कवर करता है प्रैग्मेटिज्म को. सी, अब सोचो, हमने 7 स्टेप ऑफ रिसर्च से शुरू किया था. 7 स्टेप ऑफ रिसर्च से हमने 4 स्टेप ऑफ रिसर्च अप्रोचेस, 3 में आए रिसर्च अप्रोचेस, डिजाइन एंड दिस फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यूज आया है. मैं अब कंक्लूड कर रहा हूं. देखो, इन सब चीजों को मैं समराइज कर रहा हूं. अगर ढंग से मेरा टॉक किसी ने सुना होगा तो आई थिंक यू आर ऑल्सो एबल टू समराइज ऑल दिस थिंग. आई हैव स्टार्टेड विद द 7 पॉइंट ऑफ द रिसर्च. 7 पॉइंट से फिर मैं आया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड में, जहां पर मैंने 3 चीजें डिस्कस की. उसमें हमने बात की रिसर्च अप्रोचेस की, एंड रिसर्च अप्रोचेस की जब बात की तो हम आए किसमें? फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यूज में, एंड डिजाइन एंड रिसर्च मेथड्स में आए. जैसी रिसर्च डिजाइन एंड रिसर्च मेथड या अप्रोचेस में आए तो हमने वहां पर 4 चीजें डिस्कस की. हम लोग 4 चीजों में क्या डिस्कस किया हमने? पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, यानी कि 1 कंस्ट्रक्टिविज्म, 2 ट्रांसफॉर्मेटिव, 3 एंड प्राग्मेटिज्म 4. ठीक है ना? इन 4 चीजों को डिस्कस किया. अब हम इन सब का सार, इन सब की समरी लेके आ रहे हैं, एंड दैट समरी इट कमिंग इन कंपाइलिंग एंड गेटिंग काइंड ऑफ कंसाइज इन 3 अप्रोचेस, एंड दीज 3 अप्रोचेस बेसिकली coming in the quantitative, qualitative and mixed method. Two more there are. There is a logical theoretical research and participatory research, but they will be down. I will mainly focus on only 3 quantitative, qualitative and mixed method. So whenever we are talking about qualitative and quantitative approaches, so it is one famous quote given by Newman and Bench. They said that qualitative and quantitative approaches should not be viewed as rigid, distinct categories, polar or opposites or dichotomies. Instead, they represent different ends on the continuum. This is very important. अब हम बात करते हैं, सपोज अब हम जब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो 1 by 1 आते हैं. सो क्वांटिटेटिव की जब हम बात करते हैं तो साइंटिफिक मेथड हम कौन से यूज करते हैं? हम करते हैं डिडक्टिव और टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन का मतलब यह है कि हम ऊपर से नीचे क्यों आते हैं, है ना? कोई चीज है, एग्जिस्ट करती है, हम धीरे धीरे वहां से आइडेंटिफाई करते करते नीचे क्यों आते हैं, एंड वी टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड थ्योरी विद डेटा, है ना? हम जो हाइपोथेसिस पहले दी गई है या पहले से बनी हुई है, उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं बाय गिविंग थ्योरी एंड डेटा. जो भी हम डाटा है, थ्योरी उसके पीछे देते हैं.
whenever we are talking about mixed method, अभी इनको मैं फिर से आपको elaborate कराऊंगा. We of course use the deductive, यानी कि हम reduce करते हैं, and also inductive method, कि वो किससे induce भी होंगे, ये भी हम देखते हैं. थर्ड हम जब बात करते हैं क्वालिटेटिव की, तो ये जो चीज है ये इंडक्टिव हम स्टार्ट करते हैं बॉटम अप अप्रोच से, यानी कि हम नीचे से शुरू करते हैं एंड हम फाइनली जो है उसके टारगेट तक पहुंचते हैं, और इस तरीके से जनरेट न्यू हाइपोथेसिस एंड ग्राउंडेड थ्योरी फ्रॉम डाटा ऑब्टेन. यार अब यहाँ पर एक चीज है कि मैं क्यों इसको इतना एम्फेसाइज किया. बेसिकली हमारी रिसर्च भी, इस पूरे वर्ल्ड वाइड की रिसर्च भी इन 3 मेथड्स पर डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, वन इज क्वांटिटेटिव, सेकेंड वन इज मिक्स मेथड, एंड अनदर वन इज क्वालिटेटिव. आई वुड से अगर मैं अपनी बात कहूं तो मेरा जो मेथड है, जो मेरा जो अप्रोच है रिसर्च का, वो मिक्स मेथड है. अभी आपको बताऊंगा कैसे मिक्स मेथड है. अब मिक्स मेथड में दोनों आती हैं, क्वालिटेटिव भी आती है एंड क्वांटिटेटिव भी आती है, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च को भी मिलाता हूं एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च को भी मिलाता हूं. तो मेरा एक मेथड डेवलप होता है मिक्स मेथड. एंड मैक्सिमम, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इन इंडिया वी ऑल आर यूजिंग मिक्स मेथड. ठीक है. क्वालिटेटिव जो रिसर्च है, एज द नेम इटसेल्फ रिफ्लेक्ट, ठीक है, क्वालिटेटिव की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम बॉटम अप अप्रोच से शुरू कर रहे हैं, तो क्वालिटेटिव जो रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो इट इज रियली सम टाइम वेरी हार्ड. अगर मैं कहूं कि एज आई गेस, क्योंकि मैं भी कुमाऊं से ही पढ़ा हुआ हूं, मैं भी जानता हूं कुमाऊं यूनिवर्सिटी की जो साइंटिफिक फैसिलिटीज हैं और कंस्ट्रेंट हैं जो वहां पर एग्जिस्ट हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है. मे बी थोड़ा बहुत आजकल अपग्रेड हो गया हो, बट इतना अपग्रेड भी नहीं हुआ होगा जितना मैं जानता हूं, और अगर कहीं पर गलती है तो उसके लिए आई रियली सॉरी. तो जो हम बात करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च इज रियली नॉट पॉसिबल इन लाइक कॉलेजेस, है ना, ऑफ आवर इंडिया एंड यूनिवर्सिटीज. अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी को अगर छोड़ दें, ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज कैन नॉट डू द क्वालिटेटिव रिसर्च, बिकॉज इन क्वालिटेटिव रिसर्च, क्यों ऐसा है, क्यों ये स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, क्योंकि हम जो स्टार्ट करते हैं हम बॉटम अप से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम बेसिक ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करते हैं, है ना, एंड देन वी आर स्लाइटली क्लाइंबिंग अप 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 एंड फाइनली गिविंग अ फाइनल रिजल्ट with a very new hypothesis, and then we are going to publish, and this work is now can be categorized in a highly kind of reputed scientific research phenomena. अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बॉटम अप अप्रोच उन्हीं के लिए सबसे अच्छी है जिनके पास बहुत अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज हो, चाहे वो आपकी रिसर्च फैसिलिटीज हो, चाहे आपकी वो फैकल्टी फैसिलिटीज हो, चाहे आपका वो जो भी, मतलब जो भी हो, एवरीथिंग कवर्स इन देयर, है ना. क्या? स्टेट ऑफ आर्ट. दैट मीन्स द कटिंग एज साइंस वहां पर होनी चाहिए, एंड दैट मीन्स देयर शुड बी अ काइंड ऑफ very high instrumentation infrastructure should be there. Not only high instrumentation infrastructure, there should be a very good living facility, क्योंकि स्टूडेंट को रहने के लिए अच्छा चाहिए, खाने के लिए अच्छा चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, एंड देयर आर सो मेनी. उनको कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए. मतलब अगर उनको सपोज उनके लैब में एक रिसर्च की, उनने थोड़ा सा सपोज एक सिंथेसिस की, एक कुकिंग की, एंड दे हैव ऑब्जर्व समथिंग, तो इमीडिएटली उस ऑब्जर्वेशन को डिटेक्ट करने के लिए उनके पास तुरंत उन्हीं के लेफ्ट हैंड साइड में या उन्हीं के बगल वाली बिल्डिंग में या उन्हीं के बगल वाली लैब में क्या होना चाहिए? एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसको वो आसानी से पता कर पाए कि हुआ क्या है ना. क्यों? अगर वो बाय चांस कोई फॉल्ट है, कोई गलती है, तो गलती को कैरी करते हुए लेके जाएंगे आगे और प्रॉब्लम हो जाएगी. तो एक समय ऐसा आएगा कि वो फिर जीरो पर आ जाएंगे. अगर वो गलती नहीं है, कोई अनयूजुअल चीज है, ठीक है ना, तो आसानी से डिटेक्ट हो जाएगी और इसलिए उस डायरेक्शन में वो बढ़ना शुरू कर देंगे, है ना. एंड फाइनली इट विल कंप्लीटली और entirely give the new hypothesis, and that's why the whatever research will get published, this will have, or this will be categorized in a qualitative research category. Now what is quantitative? अब हम पहले क्वांटिटेटिव की बात करते हैं. इसके बाद क्वांटिटेटिव में क्या है कि हम टॉप डाउन अप्रोच से चल रहे हैं. दैट मीन्स हमारे पास एक लिमिटेशन है. लिमिटेशन क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम द पेप्टाइड केमिस्ट हियर, आई हैव अ लिमिटेशन. मेरे पास एक लैब है, ठीक है, सारी चीजें हैं लैब में, सब कुछ है, बट प्रॉपर एनालिसिस फैसिलिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल, है ना. या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, या एनालिसिस कहें, या कुछ ऐसी चीजें कहें, या स्मूथ कंडक्टिंग कहें, या बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की बात करें, वो नहीं है. तो होगा क्या? अब मेरे साथ एक लिमिटेशन होगी. लिमिटेशन ये होगी कि ये मैं कोई भी काम करूंगा तो प्रॉब्लम आएगी, है ना. तो अब मैंने क्या करना है?
मैंने अपना ब्रेन यूज करना है, मैंने अपनी एक्सपर्टीज यूज करनी है, जितना मेरे से हो सकता है, जितना ज्यादा मेरे से अच्छा हो सकता है, उस केस में मैं उतना अच्छा करूंगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट पर आकर के मैं रुक जाऊंगा। दैट मीन्स लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम द केमिस्ट, इफ आई एम डिजाइनिंग अ मॉलिक्यूल एंड मैंने एक मॉलिक्यूल डिजाइन किया, बट मैं एप्लीकेशन शो नहीं कर पाया इस मॉलिक्यूल का, मैं सिर्फ इस बात पर कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूल मैंने इस इंस्पिरेशन से जो है डिजाइन किया था और इसका ऐसा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है, जो जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट ऐसा आ सकता है, बट मैं एक हाइपोथेसिस दे रहा हूँ कि ऐसा रिजल्ट आ सकता है, और ऐसे रिजल्ट आने के साथ क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल इस तरीके से यूज किया जा सकता है। सारी चीजें सत्ता में हो रही है ना। दैट मीन्स व्हाट आई एम डूइंग, basically I am whatever available data I am having, based on this data I am just making one statement, and this statement is also kind of proposed statement. ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल validated statement है ना, जबकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में वैलिडेटेड स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखें आप लोग। एंड देयरफॉर अब मेरा कंपाइलेशन हो गया, मैंने एक पेपर पब्लिश कर दिया या मैंने एक रिसर्च पब्लिश कर दी, ठीक है ना, पेपर से मतलब यहाँ पर रिसर्च से हो गया। इट not went very high impact but not very low, in somewhere in mediocre condition. Secondly, फिर अब एक काम खत्म हो गया, दूसरे काम पे स्टार्ट किया, वहां भी वही लिमिटेशन आई, तीसरे पे स्टार्ट किया, वहां भी वही लिमिटेशन आई। अब मुझे एक चीज समझ में आ गई, काम तो मैं कर ले रहा हूँ बट मैं उनका फाइनल एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन नहीं दिखा पा रहा हूँ, है ना। दैट मीन्स क्वांटिटी तो मैं डेवलप कर ले रहा हूँ बट क्वालिटी बहुत अच्छी डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ। क्वालिटी है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, समझ में आ रही बात, ऐसा नहीं कि यहाँ भी क्वालिटी नहीं है। तो दैट मीन्स हियर the quantity is more and quality having some limitation. So that means it is now quantitative research in this case. Now coming to mixed method. अब हम mixed method में आए, जैसे mixed method में आए, as I told you कि मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया और उसका मैंने सारी चीजें की जो बेसिक में कर सकता था। फाइनली अब मैंने सोचा कि यार अब तो प्रॉब्लम है, इसको मैं आगे तो बढ़ नहीं पा रहा हूँ इसमें रिसर्च में, तो मुझे क्या करना है। Then I search for the collaboration. I just requested to the biologist, I requested to the computational chemist, I requested to the physicist, and so many things, and finally what happened that they have given me some different kind of idea and hint so that they can do something with my molecule. So they have done, and finally I have also done. So now we compiled these results, and by compiling these results, so I got the I got the collection from the quantitative, as well as I got the information from the qualitative, and I mixed these methods and published this thing with a very good scientific journal, and finally it got very highly cited data and something like this. So that's why my result and my research is coming or categorized into the mixed method. I hope आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। Yes, sir. Okay, very good. So that means in most of the cases in India, even not in India, not in other country also, people are using mixed method. Because why mixed method? The problem in the the advantage in the mixed method is that they are interdisciplinary, not a hardcore science. अगर हार्डकोर की साइंस की बात करेंगे तो हम सीधे कहाँ जाएंगे, क्वालिटेटिव की ओर जाएंगे, ठीक है ना। जैसे क्वांटम केमिस्ट्री की बात करें या क्वांटम फिजिक्स की बात करें, मतलब जो बिल्कुल हार्डकोर चीज है ना। हम मैथमेटिक्स में आए तो आई यूज्ड टू हर्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स, they used to do very good mathematics and a real number theory, and there are so many things. तो कि भाई नंबर तो नंबर, हमने भी शुरू में नंबर ही पढ़े, कक्षा 1 से लेकर के आगे तक पढ़ते गए, नंबर ही पढ़ रहे हैं, और लेकिन बाद में देखा कि यार वो लोग अलग ही नंबर थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हाइपर फिजिक्स एंड सो मेनी थिंग्स, तो दीज आर बेसिकली द हार्डकोर साइंस। सो when we compare all these things, so there are other heading also, I am just quickly following them. View of human behavior. View of human behavior for qualitative research के लिए, sorry, quantitative research के लिए क्या होगा? Behavior is regular and predictable. Yes, obviously. भाई मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता तो दिया कि मुझे मालूम है कि मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, अगर मैं किसी से कोलैबोरेशन नहीं कर रहा हूँ और सारा चीजें मेरी बंद है, मतलब नहीं आगे बढ़ना चाहता, मैं इतने से ही काम करना चाहता हूँ, तो मेरा ऑलरेडी प्रेडिक्टेबल है कि इससे ज्यादा जाना नहीं है और इससे अच्छी साइंस होनी नहीं है, या इससे ज्यादा साइंस हो नहीं सकती, ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड में क्या है, बिहेवियर इज समवॉट प्रेडिक्टेबल, बट नीचे अगर आएंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव में, इट विल हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, फिर हम सबकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बट हियर इन क्वालिटेटिव बिहेवियर इज फ्लूइडिक, दैट मीन्स इट इज हैविंग an enormous potential. It can apply for any kind of field because you have generated a very quality or high quality of data so that everyone can rely
and everyone will accept and everyone can support these results at that time. So this is very, but qualitative research will always be rare. That is the problem in this one. ठीक है ना? Now coming to the research objective heading of this comparison, so it should be description, explanation and prediction. Simple इतना ही होगा. And यहाँ पर जो होगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होगा. इसमें क्या होगा क्वालिटेटिव में? डिस्कवरी होगी, एक्सप्लोरेशन होगा एंड ऑल्सो डिस्कवरी होगी. ठीक है ना? फोकस की जब बात करेंगे तो नैरो एंगल लेंस, देयर इज नो वाइडर एंगल, है ना, वेरी फोकस्ड थिंग, है ना. टेस्टिंग स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, नॉट मोर देन दिस. इट विल बी द मल्टी लैंड फोकस. दैट मीन्स एज आई टोल्ड यू, मैंने शुरू में तुमको बता दिया है कि ये मिक्स जो मेथड है वो इस तरीके से काम करती है. तो मल्टी लेंस फोकस, दैट मीन्स इट विल हैव अ वेरी काइंड ऑफ मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट. And in qualitative, it will have a wide angle and wide range angle and deep angle lens. That means because you are describing some problem, ना, so that's why आप उसकी रूट तक जाओगे. डीप इसीलिए होगा वो, रूट तक जाओगे. That's why we are keeping the word here, deep angle lens. Examining breadth and depth of the phenomena. जो phenomena develop हुई है, जो मिला है, जो भी theory वहां से मिली है, जो भी चीज हमको observe हुई है, that will have a very high depth and high breadth. That's why it is qualitative research. So I hope you all are understanding. And similarly, if you just go for nature of observation, you can easily differentiate by reading them. If you go for nature of reality, you can also differentiate. If you can go for data, then you can also and it is clearly written in the mixed method column, multiple forms. Obviously, because you are doing collaborative research, and based on the collaborative research, it is, not in focuses in one kind of science. It is focusing in different kind of scientific corner. Okay, because you are taking help from all things. And if you just go for qualitative, then here it is researchers is primarily data collection instrument, using in depth interview, and then observation, open-ended question, etc. Everything is possible here, in this one. So that means it is really a qualitative, and the mixed method is always really a mixed method. And edge is itself, the name is suggesting, and quantitative is always a quantitative, and it is also having the quality. It's not that it is not having the quality, but the thing is that only with a limitation. That is the mainly problem. So इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा सारी चीजें. तो मुझे लगता है कि सब मुझे इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. आई विल सेंड दिस पीपीटी टू द madam, and then she will disseminate this thing to you or to all of you, and it will get help. If any question comes from here, so everyone is welcome. No one, you should not get hesitate. You can write my email. I will put at the last. I will also give my email, and madam already knowing about this thing. So you can ask, and you can have a kind of question and short discussion, okay, regarding this. Even the WhatsApp number also can be floated. There is no problem. If there is any kind of problem, you can create a group, and I can answer the common question problem in that group, so that I should not answer individually to everyone and several times. So that will be my basically the idea, and this one. So again, this comparative view of approaches, there are so many things. Again, I am not going to discuss here, because I have already given the the base as well as the exact theme, what is basically these methods and what they meant basically. Now you can easily understand that why initially I have focus that much that कि finally कहाँ पर हम आते हैं और कैसे रिसर्च को हम करते हैं. तो ये एक लास्ट मेरे ख्याल से एक स्लाइड होगी यहाँ पर. लॉजिकल एंड थ्योरेटिकल रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो देयर आर 2 sentences quoted here. Biological theoretical approaches, research approaches is meant a formal deduction of logical consequences from a set of initial assumption. Okay, if the axioms are true and the rules are logically sound, the consequences are true as well. Very simple. अगर आप इतने में इसको पढ़ें, if the axioms are true, that means whatever you have thought, and if whatever you have given the logical and the logical assumption before that, if they are true, the rules are logically sound, and जितने भी जो rules आपने उसमें develop किए हैं वो सारे के सारे exist करते हैं, and they are having a very foolproof mechanism. The consequences will be also automatic. That means the consequences will be also true as well. So according to the Hisham et al. ये एक पेपर है, उसमें अगर आप जाएंगे तो वहां मिल जाएगा. Another one is that ये भी कहता है कि data modeling is first and foremost a social and
organizational activity, and very little, if anything, except consulting folklore is known how data modeling is exercised in practice and what is impact are on organization than their information system management and business operation. So ये जो सारी चीजें हैं, ये जब आप इसको डिस्कस करोगे तो ये आपको खुद ब खुद धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाएंगी. और यहाँ पर जो मेन चीज है वो जो रिसर्च है, दैट मीन्स इट शुड बी लॉजिकली ट्रू. तो इसी तरीके से ये पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च है, इसके बारे में भी एक यहाँ पर छोटा सा पैराग्राफ दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं. ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. इफ नॉट देन डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है. नाउ क्राइटेरियन फॉर सिलेक्टिंग एन अप्रोच, ये एक क्राइटेरिया है किसी अप्रोच को आप कैसे सिलेक्ट करते हैं. तो इसमें पहला जो क्राइटेरिया है दैट इज द नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम और इश्यू बीइंग एड्रेस, द क्वेश्चन वी नीड टू आंसर, पर्पज ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, क्या है इस प्रोजेक्ट का पर्पज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसर्चर्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस, स्किल, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा इज कॉल्ड रिसर्च. ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर. तो ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है उसमें ये आता है, ठीक है ना. रिसोर्सेज एट डिस्पोजल, सेंसिटिविटी ऑफ द इश्यू एट हैंड बाय डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, दैट इज कॉल्ड नॉलेज जेंसी. ओके, एंड द ऑडियंस एंड द कंज्यूमर ऑफ द स्टडी. सो ये जो क्राइटेरिया है, ये 3 या 4 क्राइटेरिया है, इस पर आप सर्च कर सकते हैं, इस पर आप अपना रिसर्च जो मेथड है वो डेवलप कर सकते हैं या अप्रोच को डिजाइन कर सकते हैं. ये आपके पहले जो 7 स्टेप में वहां से भी चीजें आप एक्सक्रीट करके ले सकते हैं और इसको इसके साथ कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है. So now at the end, I finally would like to, these two basically my PhD student, one is Anand Kotu and Shruti Sharma. Basically, they have, spent a lot of time making such kind of PPT for you guys because I was not having much time. And yes, the participant Khushbu, Miss Khushbu, PhD student, and Satyen K. Tripathi also contributed a lot here. Now he is almost going to submit his thesis, and he got the assistant professorship position in his UP PSC examination. And these are the alumni of my lab. Dr. Vikas Kumar, actually he is the recipient of Claude Leon postdoctoral fellowship from Stellenbosch University, South Africa. At present, he is the DS Kothari Fellow and ISC Bangalore under the supervision of renowned scientist Professor Tapas. And he is Dr. Ramesh, just graduated from my lab. And at present, he is working as a project associate or postdoctoral fellow in IIT Gandhinagar. And this one is Dr. Sadhya Gupta. He was the DST NPTF fellow and very laborious as well as, rational thinker. And this one is Dr. Vishal Suryavanshi, a CSIR postdoc, and contributed a lot for my research laboratory. And these are some funding. You can see here the completed grant as well as the running grant. So total till now 8 project has been executed in my laboratory. Okay. And finally, I would like to thank you for your kind attention. If you have any question and query, so you can visit my personal homepage. This is kvjhome.org. And this is the university web page. Also, you can also get the same research information. And you can go and read the paper, and you can have some kind of good flavor and, interesting kind of research that we have done in last, 8 years since the day of joining in this university. So thank you. Thank you very much for, your patience listening. And that's it from my side. Yeah, thank you, sir. You focused on philosophical worldview, research method and designs, and you very impressively told us that the research should be change-oriented and research-oriented. You told very impressively about the pillar of a research guide, that they should be based on the positivism, constructivism, transformation, and pragmatism. You also told a very important point that all the streams should be correlated and collaborated with each other. That is very important in the present times. And you focused on the basic set of beliefs that guide sections. And sir, I extend my generous thanks to you on behalf of all my research scholars for taking time out of your busy schedule. I hope our research scholars will surely get benefited with your illuminating idea, knowledge, and experiences on research approach, concept, and you hope your extensive and fruitful lecture will surely enlighten our research scholar in the field of research. Motivation play a very important factor in the field of research, and you very greatly motivated to our scholars. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you, now madam. I would like to invite Vikas Pant
to convey vote of thanks to sir. सबसे पहले तो डॉक्टर के बी जोशी सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर इस वंडरफुल सेशन के लिए। सर मेरा विश्वास है कि आपके द्वारा बताई गई जो हर एक चीज है रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने जो भी बताया हमें, वो हमारा जो आगे रिसर्च का लैब चलेगी या रिसर्च की जो भी हमारा स्किल आगे चलेगी उसके लिए बहुत यूजफुल होगी। ना रिसर्च में सर, रिसर्च के आगे भी जब हम पीएचडी कर भी चुके होंगे और किसी को करवा भी रहे होंगे तो वहाँ भी ये चीज़ बहुत हमारे सर काम आएंगी। मैं हमारी रिसर्च कोऑर्डिनेटर माया मैडम का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से हम सर आपके साथ एक वंडरफुल सेशन कर पाए। और सर मैं ही नहीं, हमारे रिसर्च के जितने भी और भी स्टूडेंट होंगे वो भी आपके इस सेशन से शायद जरूरी बहुत लाभान्वित हुए होंगे। तो सर लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आगे भी हमें आपकी कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए होगी तो हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। थैंक यू। श्योर माय प्लेजर, ऑलवेज थैंक यू वेरी मच विकास। थैंक यू मैडम। सभी बच्चों को एक चीज और, क्योंकि मैं सर को बहुत पहले से भी जानती हूँ, मेहनत कैसे बोलती है और कैसे बुलंदी और मेहनत के दम पर कैसे बुलंदी पर पहुंचा जाता है, ये सर उसका एक साक्षात जो है उदाहरण है। और सर की जो आप उपलब्धियां देख रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा एक हार्डवर्क है और डेडिकेशन है। और आप लोगों से भी अपेक्षा करती हूँ कि से प्रेरणा लेके आप भी ऐसे ही डेडिकेटेड पर्सनैलिटी बनिए अपनी फील्ड में और अच्छा कार्य करिए। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। थैंक यू मैडम, थैंक यू।